everyone, welcome to the second episode of Fight Talks, and today we will connect with a senior who is not only an Android developer but he is also an entrepreneur. And today he will tell us how he has achieved this level and how you can do it too. So let's get into it. So Bhaiya, could you please introduce yourself to our audience and your exciting journey of starting this startup and also excelling in this career in this tech field? Yeah. Hi guys, I'm Anubhav PS, Anubhav Purushottam Sahu. So I'm 22 years old and I'm from Odisha, but I stay in Chennai. College was I studied in VIT Chennai. So I just graduated VIT. एक्चुअली सच बताऊं तो ग्रेजुएट हुआ नहीं, मेरा एक बैकलॉग है, तो अभी घर में सोए हैं, तो इसलिए मैं तो एक्चुअली व्हाट आई थॉट वाज कि बताऊंगा नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ घर मम्मी पापा होंगे, मतलब सुन लेंगे, अभी तो सो रहे हैं, तो एग्जैक्टली बताऊंगा तो हाँ अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, एक बैकलॉग है, तो फिर भी कोई बात नहीं, आई विल से अबाउट ऑल दोस बैकलॉग्स आल्सो इन लेटर स्टेज. तो आई स्टडीड इन वीआईटी चेन्नई एंड उसके बाद स्कूलिंग जो हुआ था मेरा चेन्नई में ही हुआ था. डीएवी आदमबाग में एक स्कूल है, बहुत लोगों को अगर वीआईटी में है चेन्नई से ही हैं तो पता होगा ये स्कूल. तो डीएवी आदमबाग में मैंने 10th स्टैंडर्ड तक तो सीबीएसई था. उसके बाद देन आई वेंट 11th and 12th जो था इट वाज स्टेट बोर्ड. So basically, after 11th and 12th, they didn't have the CBSE, so it was state board. I had the option to go to another college, another school. वो बताऊंगा क्यों नहीं गया, वो सभी बता दूंगा आगे जाके. तो बट गया नहीं वहाँ पे CBSE था, पर वहाँ पे गया नहीं. फिर यहाँ पे स्टेट बोर्ड में लिया था 11th and 12th, वहाँ पे CSE किया था. 11th and 12th में एक स्ट्रीम होता है, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना, तो आई टुक CSE, वो कंप्यूटर साइंस. फिर उसके बाद कॉलेज में एंट्रेंस दिया, ट्रिपल ले लिया. दैट्स इट ऑल अबाउट माई बैकग्राउंड, कि हाँ यही एजुकेशन बैकग्राउंड है, अभी तक जितना भी क्या वही है, और कुछ नहीं है, इतना ही अबाउट. Okay, that's a very nice introduction about yourself. So, next question, we would like to know about your startup, which is Efficient Bytes and a tech platform. Can you just say your missions of this platform and your goals? So about this startup, Efficient Bytes, it is, I would say it's not more of an edtech. I mean, what I'm doing there is an edtech, but I'll be shifting the perspective here. It's not an edtech. It is, I would say, it is an addictive platform, because as you say, if you see my 4 years of journey in college, I mean, many of you would have known. That's why you would have also approached that. I was I was a triple E student, and then all my projects, if you see, is in Android. It's like application development, Android development, app development, all those things. And then on the side, I was doing teachings to students, like in robotics club. I was conducting events, I was managing events, and also conducting teaching. I was like going and teaching that, conducting seminars and all those things. So if you look into all those things, being a triple E student, having a triple E course, and then doing all these things in computer science field, like making app development, it's like even full stack, like going from front end designing and then back end, all those things being in triple E is something hard. Even some people won't believe. If I was an interviewer and I am looking at someone like me in the interview, then I wouldn't believe that person, because this is so many things, being a triple E student, and then even the achievements. This is something which I've faced in a lot of interviews also. People have said that, how did you come? First thing which they ask is like, going through resume, how did you do all these things? How did you manage to do all these things? So they ask so many questions about it just to know whether this person has genuinely done or not. तो ये सब देखोगे तो मतलब इतना जो है कि प्रोडक्टिविटी कैसे हुआ कि बीइंग अ ट्रिपल स्टूडेंट, तो हाउ वाज दैट पॉसिबल. ये जो चीज़ है कि आई वाज एबल टू डू इट. देयर सो मेनी अदर पीपल हु आल्सो वांट टू डू द सेम वे. मतलब बहुत लोग होंगे जो कॉलेज में जिनको सीएससी चाहिए था लेकिन सीएससी मिला नहीं होगा, ट्रिपल गए होंगे, इसी रैंकिंग बेस के ऊपर हुआ, उनका सपना होगा सीएससी करने के लिए, लेकिन उसके बाद होगा कि हाँ नई सीट नहीं है, मैकेनिकल ले लो, ट्रिपल ले लो. ऐसा ही हुआ था मेरे साथ. तो उनका सपना ऐसे, इट शुडंट ब्रेक, ऐसा नहीं कि हाँ. तो यू हैव टू कीप दैट अलाइव, गिव देम अ होप कि हाँ यू कैन आल्सो डू इट. So that is why till now in the last this 4 years I have never aligned with any CSE student to make my project. I have never grouped with any of them. Even triply maybe, even if triply student was there I would have done it, but triply में ऐसा कोई नहीं था मेरे बैच में कि हाँ प्रोजेक्ट बनाते हैं. प्रोग्रामिंग में उस टाइम को जावा में बनाता था. आई वाज मेकिंग ऑल माय एप्स एट दैट टाइम इन जावा, कोर जावा फुल्ली. मल्टी थ्रेडिंग था, इतने सारी चीज़ें थे कि मतलब
लोगों को ट्रिपल में इतना पता नहीं था। मैं बोलता हूँ भाई ट्रिपल, लोग खुद बोलते हैं भाई मैं इसलिए ट्रिपल ले आऊँ ताकि मुझे प्रोग्रामिंग ना करना पड़े, ठीक है। तो देयर वाज नॉट मेनी पीपल एट दैट टाइम। तो सीएससी के स्टूडेंट्स भी नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर इफ आई टेक समवन फ्रॉम सीएससी, तो ऐसा होता है कि द प्रोजेक्ट्स, इफ इट गेट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय समवन, लेट्स से कि एक स्टेज मिलेगा कि जहाँ पे यू गेट टू शो केस, तो ऑटोमेटिक एक असम्पशन होगा कि हाँ इस दो लोगों में से इस टीम में ये सीएससी का है, तो इसी ने शायद प्रोग्रामिंग किया होगा, ट्रिपली वाले ने शायद कुछ आइडिया दिया होगा। तो दैट हार्ड वर्क विल गेट मूव्ड, पर्सपेक्टिव जो होगा चेंज हो जाएगा। तो वो सब मैं चाहता नहीं था कि हाँ मैं मेहनत करूँ फिर उसके बाद किसी और के मतलब चले जाए, मतलब दिखे कि हाँ वो सी बंदे ने। तो मैंने कभी भी इस 4 years में बहुत सारे मतलब देयर आर सो मेनी स्टेजेस वेयर आई फेल्ट लाइक कि दिस वेरी हार्ड, मतलब कुछ कुछ कोड्स डिबग करने में, मतलब जैसे मतलब ऐप में कुछ फीचर्स थे जो काम करना था लेकिन काम नहीं करता था, जैसे मेरे को चाहिए था वैसे काम नहीं करता था। तो आई हैड टू लाइक सिट 2 days to 3 days कंटिन्यूअसली कि इसको कहाँ पे गलती हो रहा था। तो एट सच टाइम्स कभी कभी ऐसा लगता है गिव अप कर दूं, लेकिन हाँ इतने दूर आ चुका हूँ, अगर जैसे लाइक सेकंड ऐप जब बना इतना दूर आ चुका हूँ, अगर नहीं बनाऊंगा, अगर छोड़ दूंगा तो ये तो छोटा प्रोजेक्ट हो जाएगा, सबको इतना कुछ नहीं हो। तो अगर सीएससी स्टूडेंट्स के साथ अलाइन कर दूंगा तो लगेगा कि हाँ सीएससी बंदे ने किया होगा किसी ने। So that's why I stayed till the last till 4 years. I made sure that I don't uh, take someone as a CA student in my team or anything. I didn't have like that. Ki I only want to do it myself, but it's not like that. I am a single person who wants to have a monopoly and all. It's not like that. It's about giving a hope. Ki if anyone is in college right now who wanted to go into some other field, I mean like CAC, but or like AIM or something, but couldn't go due to so many chances will be there, financial ranking and so many things will be there, but you don't have to worry about those things. I mean, I wanted to give them a hope, so that's why I stayed till the last. I ran everything solo. I didn't go for any teammates and all those things. So यही है कि मतलब this efficient bytes also what I want to do in efficient bytes startup is that कि how to make productivity an addictive game. It's like how to make it an addiction. मेरा जो था एडिक्शन टाइप था ऑलमोस्ट, कि हाँ घर आऊँ पूरा प्रोग्रामिंग करूँ जितना जल्दी हो सके, मैं न्यू न्यू अपडेट्स, न्यू फीचर्स, अगला ऐप, ऐसे में काम करना। ऐसा नहीं कि आई वाज नॉट प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं, मस्ती नहीं था पर टू अ लेवल आई वाज एबल टू गिव प्रायोरिटी टू दिस आल्सो, मैक्सिमम प्रायोरिटी। तो how I made that thing addictive, that's what I want to make in this efficient by startup, is I want to give it a new perspective to edtech, to make it addictive, कि लोगों को खुद लगे कि हाँ ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप जो है वो ऐसा लगे कि हाँ पुश करना है कोई तेरे को, हाँ भाई तुमको प्लेसमेंट चाहिए तो आ जा, पढ़ने के लिए आ जा, यहाँ पे कोर्स में तेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगा, जो पता नहीं सच है कि नहीं लग गया। बट यहाँ पे आई वुड मेक श्योर दैट कि हाँ लोगों को खुद फील हो कि हाँ मैं खुद जाऊँ, क्योंकि दैट शुड सम एडिक्टिव एलिमेंट इन दैट स्टार्टअप दैट विल पुल द स्टूडेंट्स बाय देमसेल्फ। ओके, तो एज दिस इज दैट्स सच टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। तो पूरा अभी और ज़्यादा फीचर्स नहीं बता सकता कि हाउ विल आई बी मेकिंग इट एडिक्टिव ऑल दो थिंग्स, क्योंकि हो गया तो मतलब कोई और मतलब अभी आ जाएगा, तो इसे तो अभी इतना इतना नहीं बता सकता। Got it, got it. So how far is your startup has reached till now? Like what it is doing right now, at what stage it is right now? ओके, तो राइट नाउ द स्टेज इट इज इफ आई से अभी और 2 महीना लग सकता है, लेकिन ऐसा है कि पार्ट्स ऑफ द स्टार्टअप वर ऑलरेडी बिल्ट इन दिस लास्ट 4 years, टेक्निकली नहीं, Mm, from mm, marketing perspective, from mm, business perspective and all those things, it was being built from the last 4 years indirectly. I was, तो मैं आगे जाके बताऊंगा कि लास्ट हाउ टू सेट लॉन्ग होता है ना शॉर्ट टाइम गोल, लॉन्ग टाइम गोल्स, तो वैसे mm, ही था मेरा। तो आई वॉज इनडायरेक्टली got it. वर्किंग फॉर इट विदाउट रजिस्टरिंग दिस Mm, स्टार्ट। तो ऐसा नहीं कि लोग यूजुअली करते हैं कि हाँ कॉलेज के बाद 2 महीना या 2 साल काम करेंगे ऑफिस में, कंपनी में, या तीन mm, साल कंपनी एमबीए करेंगे फिर आके देन दे विल स्टार्ट स्टार्ट। yeah. ऐसा नहीं है। मैं आई वाज फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज इन दैट स्टेज कि हाँ कॉलेज के बाद करना है स्टार्टअप। तो आई वाज वर्किंग ऑन इट इनडायरेक्टली एट सम टाइम्स। तो टेक्निकल Mm, पर्सपेक्टिव में देखोगे तो मतलब ऐप बनाना और वो सब में तो और 2-3 महीना लग सकता है, लेकिन वो बिना mm, बना के भी आई कैन रन इट, लाइक mm, इनिशिएट कर सकता हूँ अभी। तो mm, अभी जस्ट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में ऐप बनाना अभी शायद 1.5 months ही हुआ होगा ऐप बना के, mm, मतलब और लगेगा तो। got it. I love this idea that,
You are from very beginning are into this starting something new after the college. Like in the rat race, many people will be only focusing on the studies, only focusing on the GPAs and all. But you had that kind of idea mindset that you had to do something different after college, right? I love this thing. Okay, so few more questions like how much you have progressed through your Android development career, and what would you suggest to those students who are in triply mechanical or chemical and want to switch their career to tech thing? You had done it right, so you could actually give them more relatable advices. हाँ, तो एनीवन हु इज दैट इन डिफरेंट फील्ड, आई मीन irrespective of what field, तो आई मीन इनफैक्ट आई वुड से दैट इवन फैशन टेक्नोलॉजी इवन दे डोंट हैव टू। मैंने अपने जो कजिन है, बहन, कजिन बहन है, वो बी कॉम करी है, तो इवन आई हेल्प इन, लाइक आई सपोर्ट हर इन saying ki how you can change your career if you want. I'm not forcefully, I don't like anyone to forcefully convert it. If they want it, True, if true. they, so I say them ways you can travel. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फ्रॉम बीकॉम यू गो डायरेक्टली टू प्रोग्रामिंग, ऐसा कोई बिलीव नहीं करेगा। अनलेस इफ आई एम स्टार्टअप देन Hmm. आई विल टेक कि हाँ अगर उसको पता है प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर ऐसे एमएनसी हैं और बीकॉम देखेंगे और आ रही है मतलब इंटरव्यू, इवन दो सी नोस प्रोग्रामिंग, इफ सी कम्स एंड अटेंड्स इट, दे वोंट टेक हर। Hmm. ओके, तो दैट्स अ वे हाउ यू कैन क्लाइंब एंड ब्रेक दैट बैरियर। ठीक है, तो पहले तो बताऊंगा कि अगर मान लो कि मैं ब्रांच ले लो, अगर मैं अब ट्रिपली में हूँ, ठीक है, सीएससी छोड़ो, सीएससी में ना, आप सीएससी में नहीं, आपको सीएससी जाना है, आपको प्रोग्रामिंग करना है, आपको आई वुड से कि फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू राइट नाउ इज, फर्स्ट टेक्निकल परस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस बहुत लोग, मुझे पता है कि यू हेट इट, बहुत लोग फेल होते हैं, समझते नहीं है कि कहाँ पे यूज होता है। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सी प्लस प्लस अगर आप समझते, अभी जितने भी स्कूल्स हैं, ये एक शायद मैं जब फर्स्ट एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, आई हर्ड द न्यूज़ दैट the schools are going to change the programming language from C++ to Python। शायद सीबीएसई में हुआ था ऐसे कि 11th एंड 12th में पाइथन सिखाया जाएगा 10th में। तो दैट आई थिंक वाज अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि लोगों को वहाँ से ही पाइथन पसंद आ गया, पाइथन Hmm. ईज़ी लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब आप कॉलेज आ रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग टू कॉलेज एंड एवरी ब्रांच हैज़ अ पाइथन कोर्स एंड देन दे हैव इवन सी प्लस एट बेसिक लेवल। पाइथन तो वहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा ईज़ी में, इवन मैकेनिकल या ट्रिपली दे आर एबल टू क्लियर इट। बट देन व्हेन इट कम्स टू सी प्लस प्लस, इवन सीएससी स्टूडेंट्स स्ट्रगल। And that is because you have Hmm. come all this way learning a easy language। ठीक है, पाइथन बहुत ईजी है। ठीक है, एंड देन True. यू आर जंपिंग इनटू अ वेरी हार्ड लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस। वहाँ पे यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब अभी इनफैक्ट सी प्लस प्लस जिनको सी प्लस पता है, उनको अभी तक पता नहीं है कि सी आउट में कौन सा वाला एग्जैक्टली फंक्शन है। सी आउट अगर Hmm. पूछोगे तो फंक्शन, लोग बोलते हैं फंक्शन है सी आउट, जबकि वो गलत है। Hmm. सी आउट इज नॉट फंक्शन, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ फंक्शन। Hmm. तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं है, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट्स क्या है, फिर क्लासेस, इनहेरिटेंस, वो सब बहुत, वो जो है, फिर इंटरफेसेस, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एट अ बिगर लेवल इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होता है डे टू डे। मेरे अगर कोड खोलोगे एंड्रॉइड के, मतलब पिछले कोड या फिर गिटहब में भी कुछ कोड्स मैंने अपलोड कर दिया, मैंने इनफैक्ट वहाँ पे अगर आप जाके कोड चेक करोगे, तो वहाँ पे इफ़ यू ओपन माई इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस का एक पैकेज होगा, मतलब एक फोल्डर होगा, वहाँ पे मिनिमम 12-20 के आसपास इंटरफेसेस फाइल्स होंगे जो खुद क्रिएट करना पड़ा। देखिए ये सब Hmm. इंटरफेसेस, आप बस कॉन्सेप्ट समझ के डेफिनेशन समझ लोगे तो एग्जाम में लिख दोगे, हाँ मार्क मिल जाएगा। लेकिन अनलेस यू नो वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, ये चाहिए क्यों, ये इसका यूज कहाँ पे, देन यू वोंट बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली। आपको खुद का कुछ करना है तो यू वोंट बी एबल टू डू इट इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। आप कोर्स सीखोगे, कोर्स में बताएंगे कि हाँ ये फ्लैपी बर्ड है, ऐसे ऐसे उड़ना है, ऐसे ऐसे, दैट्स इट, यू विल डू इट, यू कैन ओनली डू दैट मच। Hmm. अगर तुमको खुद का कुछ Hmm. कस्टमाइजेशन डालना है उस ऐप में, ये यू वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि Hmm. कस्टमाइजेशन के लिए तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली, द कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तुमको। अगर खुद का कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो सिखाएंगे नहीं, उनका काम था बस फ्लैपी बर्ड सिखा के चले जाएंगे। ठीक है, अब तुमको कुछ Hmm. कस्टमाइज करना है, ऐसा नहीं कि तुम मार्केट में जाओगे, स्टार्टअप खोलोगे, फ्लैपी बर्ड दोगे वहाँ पे, तुमको कुछ खुद का कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर दैट कि यू नो दी प्रॉपर कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि यू विल बी एबल टू मेक इट अप, योर जितना भी तुमको खुद का कस्टमाइजेशन है, यू विल बी एबल टू। तो फॉर दैट सी प्लस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ऐसा नहीं कि सी प्लस प्लस वहाँ पे यूज होता है, यही है कि सी प्लस प्लस विल मेक यू
मेक इट ईजियर इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इन अदर लैंग्वेज। क्योंकि पहले सी प्लस हम्म, प्लस आया था, अगर देखोगे तो मतलब सी आया था, फिर सी प्लस प्लस, फिर बाद में जाके पाइथन आया था। तो अगर आपको जावा समझना है, देन इट विल बी मच हम्म, ईजियर इफ यू हैव कंप्लीटेड ऊप्स इन सी प्लस प्लस। यू कैन ट्राई इट आउट, हम्म, मतलब आपको अगर जावा समझना है, इफ यू लर्न इवन कंप्लीट ऊप्स, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इजी लगेगा। मैं जब जावा सीखा था, मेरे को कोई डर नहीं लगा था। बहुत लोग, मैं जब फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में सीनियर्स कुछ थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब जावा बहुत हार्ड है भाई, ऐसा ऐसे सुना था। मतलब अभी तो उस टाइम को मैं जावा कोडिंग किया नहीं अभी तक उस टाइम को, लेकिन हम्म, बहुत सुनने को आया था उस टाइम को, मतलब सीनियर्स बोलते हैं बहुत टफ है, ऐसे ऐसे एसटीएस में फेल हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो फिर लेकिन मैं जब जावा स्टार्ट किया था सीखने के लिए, मेरे को कुछ नहीं लगा था, मेरे को कुछ डर नहीं लगा था। क्योंकि आई वाज लुकिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सी प्लस प्लस, वहाँ पे कौन सा सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो रहा है। तो आई वाज एबल टू रिलेट इट कि हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ था, यहाँ पे क्लास यूज हुआ था, तो यहाँ पे भी क्लास यूज हो रहा था सिस्टम डॉट आउट क्लास में। तो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। मेरे को वहाँ पे कुछ डर नहीं लग रहा था कि हाँ ये बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। बिकॉज सी प्लस आई लर्न हम्म, सी प्लस प्रॉपरली। ठीक है, आई हम्म, लर्न सी प्लस फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, 2 साल अच्छे से पढ़ा था मैंने। मतलब घर में there was a book which I learned, I forgot which book it was, C++ by Dennis Richards, तो वो मैंने बहुत पढ़ा था, मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल। 11th 12th में लैपटॉप था नहीं था उस टाइम को, तो ओनली बुक्स वाज देयर, यूट्यूब भी कभी कभी पापा के फोन में देख रहा था। तो या द बुक वाज बिट हम्म, हेल्पफुल फॉर मी इन सी प्लस प्लस। फिर कॉलेज आने के बाद लैपटॉप में थोड़ा कोर्सेज करना स्टार्ट किया। तो या आई वुड से लर्न सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रॉपरली। मेक श्योर यू गिव एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रॉपर टाइम टू लर्न सी प्लस प्रॉपरली। छोटा सा कुछ प्रोजेक्ट बनाइए सी प्लस प्लस में। फिर देन व्हाट आई वुड से इज दैट कि लुक इनटू व्हाट फील्ड यू वांट टू गो एग्जैक्टली। तुमको अगर एक ड्रीम है कि हाँ, विजन है कि मेरे को एक आइसक्रीम का एक ई कॉमर्स बनाना पड़ेगा जहाँ पे मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मेरा खुद का एक आइसक्रीम का है, ई कॉमर्स है जहाँ पे आई ओनली सेलिंग है। हम्म, तो इफ आई वांट, हम्म, दैट इज माई ड्रीम। तो मेरे को देखना हम्म, पड़ेगा कि मेरा मार्केट प्लेस कहाँ पे है, कि मेरा मार्केट प्लेस जो है एनी वन कैन यूज इट। ऐसा है, अगर कोई भी, मेरे को चाहता हूँ कि मैं सबको टारगेट करना चाहता हूँ, कि सारे मार्केट को, इवन अडल्ट, मतलब जो एल्डरली हैं वो भी आइसक्रीम खाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं, तो उनको भी अगर मैं, तो उनके पास तो आईफोन ऐसा ऐसे मोबाइल फ़ोन से नहीं होगा विलेज में। आप सोचो कि विलेजेस में भी आपको करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वहाँ पे तो मोबाइल्स नहीं होगा, वहाँ पे होगा ब्राउजिंग सेंटर, हम्म, ऐसे ऐसे। तो हम जस्ट गिविंग, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होगा कि हाँ आइसक्रीम के लिए विलेजेस में कोई आके बुक, मैं बस बोल रहा हूँ मार्केट में देख रहा हूँ कि, तो got it, वहाँ got it. पे यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप सबको टारगेट कर रहे हो। तो उस टाइम को यू हैव टू सी दैट कि हम्म, मोबाइल में एक, मैं अगर मेरा अकेला हूँ टीम पे, मैं अगर मोबाइल ऐप बनाऊंगा, एंड्रॉइड बस बनाऊंगा, तो मैं iOS मार्केट को खो जाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू टैप दैट एंड्रॉइड, मतलब iOS मार्केट। फिर हम्म, जो वेबसाइट है, जो लोग वहाँ पे जो ओल्ड जनरेशन है, जैसे हमारे पापा मम्मी या फिर विलेजेस के लोग हैं, उनको तो अभी कंफर्टेबल नहीं होगा कि खुद का है, वो तो वेबसाइट में जाके गूगल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उनको मैं खो हम्म, जाऊंगा, वो भी मैं टैप नहीं कर पाऊंगा। तो ओनली एंड्रॉइड यूजर्स आई बी एबल टू टैप। तो इन दैट हम्म, फील्ड शुड आई गो फॉर एंड्रॉइड? नो। क्योंकि मेरा मार्केट कहाँ पे है, मेरा मार्केट सब है, मतलब बेसिक मिनिमम। मेरे पास अभी कम टाइम है, कम पैसे भी है। इन दिस कंस्ट्रेंट आई हैव टू टारगेट द एंटायर मार्केट। तो मैं क्या करूँगा, आई विल हम्म, गो फॉर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, हम्म, तो वहाँ पे वेब डेवलपमेंट करूँगा, तो एटलीस्ट 1 ईयर कुछ टाइम के लिए आई विल बी एबल टू टैप ऑल दी पीपल। iOS के लिए अगर अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो सबको चाहिए, मिनिमम जो खरीद मार्केट है उसका डिमांड है, तो हम्म, जो भी है iOS भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसका नखरा होगा कि नहीं मैं ऐप आएगा तभी मैं इंस्टॉल करूँ ऑर्डर करूँगा, ऐसा नहीं होगा। वो वेबसाइट में जाके भी आप हम्म, ऑर्डर कर लेगा। ठीक है, तो नाउ हम्म, यू आर एबल टू टारगेट द एंटायर मार्केट। ऐप भी बना, ऐप एंड्रॉइड यूजर्स भी यूज़ कर पाएंगे, एप्पल यूजर्स भी यूज़ कर पाएंगे, वेबसाइट जो ऐप चलाने नहीं आता उनको भी वो यूज़ कर सकते हैं ब्राउजिंग सेंटर में। तो वो आपके विजन के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, विजन ड्रीम्स आपके विजन, आपका आइडिया, उसके ऊपर आप डिपेंड करना करेगा कि आपको अगला फील्ड जो है, अगला कोर्स या जो भी हो, अगला प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट फील्ड है, वो क्या चूज़ करना है, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो राइट नाउ यू विल नो दैट कि हाँ मेरे को वेब डेवलपमेंट टारगेट करना है, फिक्स करना है, तो आई विल स्टार्ट बैक ट्रैकिंग। वेब डेवलपमेंट करना है तो आई हैव टू गो एंड लुक इनटू व्हाट आर द वेज आई कैन मेक एन वेब डेवलपमेंट। देयर आर सो मेनी हम्म, वेज यू कैन मेक ए वेब डेवलपमेंट। फ्रेमवर्क्स बहुत हैं, रिएक्ट है, हम्म, एंगुलर है, इवन इन जावा यू कैन डू, अभी कॉटलिन भी आ रहा है। तो देयर आर सो मेनी हम्म, फ्रेमवर्क्स व्हिच यू कैन मेक एंड मतलब वेबसाइट। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ तो बताऊंगा कि कोई कुछ कुछ चीज़ कंफर्टेबल नहीं है, सब ईजी, कुछ ईजी नहीं है, एवरीथिंग विल बी हार्ड। जो अभी मूव करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में, स्टार्टिंग हम्म, में आपको दिक्कत लगेगा कि हाँ ये तो भाई बहुत डरावना है कोडिंग। मैं बता दूंगा कि आई हैव टू से दैट नथिंग इज ईजी इन प्रोग्रामिंग। बहुत, मतलब ईजी भी आप तब बता सकते हो जब आप कंपेयर करोगे। व्हेन डू यू से समथिंग इज ईजी, व्हेन यू कंपेयर टू समथिंग एल्स। अगर आपने ऑलरेडी कुछ कर दिया,
वहाँ पे आपको थोड़ा ईज़ी लगा, और यहाँ पे आपको जो नया चीज़ है वहाँ जो नया चीज़ वहाँ पे थोड़ा हार्ड, देन यू कैन कंपैरिज़न। ईज़ी इज़ व्हेन यू हैव कंपेयर्ड 2 थिंग्स। तो यहाँ पे आप ईज़ी बता भी नहीं सकते। तो सेकंड चीज़ है हम्म, हार्ड, ईज़ी कुछ भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज है, कुछ भी ईज़ी नहीं है। ठीक है? अगर ईज़ी होता तो सब लोग कर देते। ठीक है? इफ इट वाज़ हम्म, ईज़ी तो एनीवन वुड हैव डन इट। सो आई वुड से कि टेक व्हिचएवर फील्ड यू लाइक। कंफर्टेबल हम्म, की कोई बात नहीं, आप बस देखो कि कौन-सा लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग जो स्ट्रक्चर जो है, जैसे आप मेरे को पूछोगे तो पाइथन और जावा, कौन-सा अच्छा है? मेरे को जावा पसंद है कंपेयर टू पाइथन। मेरे को स्ट्रक्चर पसंद है। जो पाइथन का जावा हम्म, का जो स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग होता है, स्टैटिकली टाइप्ड है, आपको पूरा हार्ड कोड लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स वगैरह वो सब सब डालना पड़ेगा। आई लाइक दैट, स्टैटिकली टाइप्ड होता है। पाइथन ऐसा नहीं है, गॉट इट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। तो आई लाइक स्टैटिकली टाइप्ड, जैसे सी शार्प हो, फिर उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस, ऑल दिस लैंग्वेज आई लाइक, सो मेरे को वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है? तो यू हम्म, चूज़ अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको कौन से टाइप का राइटिंग पसंद है। कंफर्टेबिलिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, कंफर्टेबल ऐसा कुछ यहाँ पे सब हार्ड, आई वुड से एवरीथिंग इज़ हार्ड। ठीक है? तो चूज़ एनी लैंग्वेज व्हिच यू थिंक इज़ गोइंग टू सूट यू, कि कौन-सा लैंग्वेज आपको हम्म, पसंद है ऐसे, एंड देन स्टार्ट लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन दैट फील्ड। ठीक है? दिस इज़ हाउ आई चोज़ कि मेरे को पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना, मेरे को एक ऐप बनाना था कॉलेज के लिए, तो मेरा फिक्स हो गया कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं बैक ट्रैक हाँ, करके देखा कि क्या-क्या लैंग्वेजेस यूज़ हो सकता है मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। फिर मैंने देखा वहाँ पे हम्म, जावा हो सकता है, फिर प पाइथन भी हो सकता था, वहाँ पे लिखा था जब ब्राउज़िंग किया था। फिर उसके बाद सी शार्प, बहुत सारे लैंग्वेजेस थे। फिर मैंने चूज़ किया कि हाँ, बहुत सारे लैंग्वेज वहाँ पे ब्राउज़ करके देखा कि पाइथन जो है इट्स नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग, इट्स नॉट सजेस्टेड फॉर मेकिंग ऐप डेवलपमेंट। It is not that efficient. हम्म, Even though it is much easier to हम्म, write code, but it is not that efficient when it comes to making apps or games. इसलिए बनाते नहीं है इतना अच्छे से टॉप हमने। तो एंड देन ओनली आई स्टार्टेड लर्निंग एंड्रॉइड, कि मेरे को पहले विज़न फिक्स करो, फिर बैक ट्रैक करके देखो कि उसके लिए क्या यूज़ होता है, फिर देखो कि अगर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, चूज़ व्हिच वन यू लाइक एंड देन स्टार्ट लर्निंग इट। दैट्स हाउ आई वुड से, बट स्टार्टिंग पॉइंट शुड ऑलवेज बी सी प्लस प्लस अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट यू डोंट गेट स्कैर्ड। मेरे को बैक एंड करना पड़ा, मेरे को फ्रंट एंड करना पड़ा, डिज़ाइनिंग तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में सीखना पड़ा। तो दैट इन दिस वे, इन दिस फील्ड, देन यू हैव टू लर्न सो मेनी लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि बस एक लैंग्वेज सीखना हम्म, पड़ेगा। तो व्हेन यू जंप फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप पाइथन पढ़ के आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको डर लगेगा कि भाई ये और एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत लग रहा है, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। लेकिन अगर आप सी प्रोसेस कर देते पहले, तो आपको कोई भी लैंग्वेज डर नहीं लगेगा। आपको सब वर्सेटाइल, आप पूरा वर्सेटाइल हो गए उस टाइम को। आप कल को बोलोगे भाई गो सीखो, यू विल गो फॉरवर्ड। आपको कुछ डर नहीं लगेगा कि भाई मेरे सी प्रोसेस सीख लिया तो और कुछ क्या है। ठीक है? तो दैट्स इट, आई वुड से कि लर्न सी प्लस प्लस फर्स्ट प्रॉपर्ली, देन चूज अ फिक्स अ विजन, क्या करना है आपको, फिर डिसाइड व्हाट फील्ड यू वांट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, या कुछ भी हो। ठीक है? Okay, so to summarize this, I would like to summarize Anubhav here's points. So, first of all, if you are in a non-tech branches and you want to shift to tech branches, so you have to first start with C++, according to Bhaiya, cause that is the most important language and that would make the further languages easier. And then after learning C++ for a few months and so, and doing some projects, you can look forward if you want to go for Android development and web development, and then you can actually backtrack that or what you should learn, what fundamentals you should start with to achieve that web development or Android development goals. Am I right, Bhaiya? Yeah, correct. So you Okay, fix the so vision and then let's move. backtrack. True, true. So let's move to next question. So, Bhaiya, in starting a startup, what motivated you to actually start implementing? Because everyone has a idea and something going on in their minds, right? But what made you start that thing? Are your friends helping you? And what situation and difficulties you faced? Let us know your experience. हाँ, तो व्हाट मेड मी स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो एग्जैक्टली, तो ये तो पहले एज आई सेड आई वाज इनडायरेक्टली वर्किंग फॉर इट फ्रॉम फर्स्ट 4 years। तो इसका मतलब ये है कि Uh, आई वाज ऑलरेडी हैविंग अ पॉइंट विजन कि यार ड्रीम्स था कि क्या करना है मेरे को, व्हाट मेड। तो पहले तो एक चीज़ है कि सिंस व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर जब था, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग 11th 12th में ही मैं आई लाइक द वे आई टीचिंग, जो है तो सिखाना, जो प्रोग्रामिंग ऐसे, क्योंकि बहुत लोगों को सी प्लस जो था थोड़ा दिक्कत लग रहा था, बहुत हार्ड लग रहा था, पता नहीं, मेरे को बहुत ईजी लग रहा था। तो मैं जब दूसरों को देख रहा था तो उनको वो हार्ड फील कर रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्यों हार्ड फील हो रहा है, मेरे को क्यों ईजी लग रहा है।
लेकिन बाकी लोग फेल हो रहे हैं, मैं यहाँ पे भाई मैं ऐसा नहीं कि पास हो ऐसा, बट आई वाज एबल टू मैनेज इट, आई वाज एबल टू लर्न इट एंड ऑल थिंग. सो व्हाट इज दैट थिंग दैट मेड इट डिफरेंट? उनको क्या ऐसा है कि उनको बहुत दिक्कत हार्ड है? दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लाइक टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स एंड देन फाइंडिंग आउट. फिर मैं समझ आया कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बायोलॉजी फील्ड से भी थे प्रोग्रामिंग में. हम्म, इसी में अगर देखोगे तो बहुत लोग बायोलॉजी से होंगे. ऐसा है कि हाँ मैं बायोलॉजी इसी ले लूँगा, फिर अगर पसंद आएगा 2 महीने के वहाँ पे पता चल जाएगा अगर मेरे को कोर पसंद है या फिर प्रोग्रामिंग पसंद है. तो वो लोगों का थोड़ा असम्पशन होगा कि हाँ मतलब एक थोड़ा असम्पशन नहीं, एक सोच होगा कि हाँ इफ आई टेक इसी मैं कोर भी जा सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर ऐसा होगा बहुत कोर भी जा सकता हूँ, सॉफ्टवेयर भी जा सकता हूँ ऐसा. ठीक है. तो वहाँ हम्म, पे बायोलॉजी में लोग जो है जो स्टार्ट तो उनका अगर देखोगे तो वो 11th 12th में शायद बायोलॉजी पढ़ के आए होंगे या फिर कॉमर्स भी देख लो. इट इज मोर अबाउट फैक्ट्स, इट्स लर्निंग फैक्ट्स एंड रिमेंबरिंग इट. वहाँ पे आप लॉजिकली हम्म, कुछ अप्लाई नहीं कर सकते इतना मुझे. अब जब तक मैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स का जो भी बुक वहाँ ऊपर से रखते हैं वैसे, तो इट इज अबाउट रिमेंबरिंग एज मच मेमोरी एज पॉसिबल. आप वहाँ पे लॉजिकली कुछ थिंक नहीं करते. जबकि प्रोग्रामिंग में देखोगे तो इट्स मोर अबाउट लॉजिकल थिंकिंग. यू हैव टू थिंक अबाउट कि हाँ मैं यहाँ पे अगर कोड लिख रहा हूँ तो वहाँ पे क्या पीछे क्या इफेक्ट होगा, या उस वेरिएबल में कैसे क्या इफेक्ट होगा. इस लूप को अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू इमेजिन इट माई माइंड इटसेल्फ कि इस लूप के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स चेंज होगा और किस तरीके से चेंज होगा ऐसे. तो ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर्स योर माइंड टू कॉन्स्टेंटली जगल, मतलब माइंड ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा पूरा कंटिन्यूअसली. लॉजिकल थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें. तो ये सब चीज़ें जो है मैंने देखा कि लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा था ये सब चीज़ें में, आप मतलब लाइक अचीव ऑल दिस थिंग्स. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड दैट कि अगर मेरे को कल को एक छोटे भाई को सिखाना है, मतलब मान लो कि मेरा छोटा भाई है उसको सिखाना है, इवन इफ यू हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू हैव टू टीच देम, दे आर वेरी यंग. If they come and ask you what is this programming and what is this for loop and how would you teach that, how would you teach उसको किस लैंग्वेज में सिखाओगे. मतलब आप ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल सिखाओगे स्टार्टिंग से, आप उसको थोड़ा कैसे बताएं, मतलब कुछ अलग तरीके से आपको उसको कहीं से लिंक करके आप समझाओगे. नॉट टेक्निकल पर्सपेक्टिव, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी कॉन्सेप्ट जब भी सिखाते हो कुछ किसी को, आपके छोटे भैया को छोटे बहन को अगर जब भी सिखाते हो तो यू ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग इन रियल लाइफ. कि हाँ yeah, अगर लाइट जल तो दैट इज हाउ इफ यू टीच इन दैट वे दे विल अंडरस्टैंड इट, दे विल रिमेंबर इट, हम्म, दे विल बी एबल टू हम्म, विजुअलाइज या रिमेंबर. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग व्हेन इट कम्स. ठीक है. तो इसलिए मैं क्या किया कि जितने भी बहुत सारे हार्ड कॉन्सेप्ट्स थे, आई स्टार्टेड टू विजुअलाइज इट, इमेजिन इट, रिलेटेड टू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कॉमन होगा, हम्म, जो बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर चुके होंगे. ताकि जब भी वो कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, इफ आई यूज दैट रियल लाइफ एग्जांपल, दे विल बी एबल टू रिलेट कि अच्छा हाँ ये वाला चीज़ है कि हाँ यहाँ पे यूज होता है. तो दे विल हम्म, फॉरगेट दैट इट इज हार्ड. सब जो मुश्किल लग रहा था वो सब भूल जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, क्योंकि उनको लगता है हाँ ये तो यहाँ पे होता है रियल लाइफ में तो ये ऐसे ही काम करता होगा, तो दे विल अंडरस्टैंड कि कुछ रिलीफ होगा वहाँ पे कि. सो दैट समथिंग व्हिच आई वाज एबल टू डू इट, कि आई वाज एबल टू मेक टीचिंग मच फन एंड ऑल्सो ईजियर वे. तो मैं टीचिंग कर रहा था हम्म, कंटिन्यूस कॉलेज में जितना भी टाइम जब भी मिलता था. इवन रोबोटिक्स क्लब भी इनफैक्ट आप देखोगे तो मतलब स्टार्टिंग जो इवेंट था मैं वहाँ पे पहला जो इवेंट था वो सिखा रहा था मैं स्टूडेंट वहाँ पे जाके. तो आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ मेरे को सिखाना है स्टूडेंट्स को, बिकॉज आई न्यू दैट सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड आई कैन हेल्प दैट. और इसको अचीव करने के लिए मेरे को आगे जाके भी अगर मेरे को कुछ करना है, इफ आई हैव टू टेक ए बिग प्लेटफॉर्म, देन पीपल विल आस्क व्हाई शुड आई लर्न फ्रॉम, मेरे से क्यों सीखेंगे, व्हाट डिड आई डू. ऐसा नहीं तो बस सिखाता हूँ, ये तो सब सिखाते हैं, सिखाएगा तो कोई भी हम्म, सिखा सकता है. व्हाट डिड आई स्पेशली डू दैट आई कैन से आफ्टर 4 years व्हेन आई स्टार्टेड कि हाँ दिस पर्सन हैज डन दिस थिंग सो दिस आई कैन गो एंड लर्न. ऐसे क्या है मेरे. तो टीचिंग तो कोई, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि हाँ मेरे को कुछ अलग करना है, दैट इज गेट समथिंग डन, रिकॉग्निशन. जैसे ऐप डेवलप करके किसको देना, कॉलेज को देना. तो वो अगर करूँगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये ट्रिपली में बैठ के प्रोग्रामिंग सीख के एंड ऑल दोस थिंग्स एंड दे वाज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग व्हिच अ सीएससी स्टूडेंट कुड हैव डन. तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि हाँ मेरे को ऐप बनाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, मतलब कंटिन्यूअस बैठ के 1 साल 2 साल पूरा बैठ के आई वाज समहाउ मेकिंग श्योर दैट आई गेट दिस ऐप डन. ताकि फ्यूचर में जाके अगर मेरे को बोलना है कि हाँ आई वुड से दैट कि हाँ देखो इफ आई कुड डू इट बीइंग इन ट्रिपली एन ऐप 2 to 3 apps और 4 apps and all these things, then why not you. ठीक है. हम्म, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग ऐप डेवलपमेंट. अभी ये चाहे थिंक है कि वो ऐप डेवलपमेंट ही क्यों सीखा, मैं वेब डेवलपमेंट भी सीख सकता था और कुछ आई वाज बहुत सारे गेम डेवलपमेंट भी सीख सकता. लेकिन ऐसा है ना कि शॉर्ट टाइम गोल एक होना चाहिए, लॉन्ग टाइम गोल होना चाहिए और एक विजन होना चाहिए. एवरीवन हैज टू हैव. हम्म,
तो आई वुड से कि लॉन्ग टाइम गोल शुड इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम योर शॉर्ट टाइम गोल्स. जो शॉर्ट टाइम गोल्स होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, इट शुड इनडायरेक्टली हेल्प यू इन अकम्प्लिशिंग योर व्हाट्स ए बिग टाइम लॉन्ग टाइम गोल. शॉर्ट टाइम गोल्स कैन बी लाइक योर 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या करूंगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करूंगा, 4 मंथ्स में क्या. बिग टाइम गोल होगा कि हाँ लॉन्ग टर्म कि 2 ईयर्स के बाद क्या होगा, क्या 4 ईयर्स के बाद क्या होगा. दैट लॉन्ग टाइम गोल शुड बेनिफिट फ्रॉम दिस सॉर्ट. तो इसलिए मैं टीचिंग कर रहा था और साइड में एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर रहा था, ताकि मैं 4 ईयर्स की या 5 ईयर्स की बाद आई विल बी एबल टू टीच, बट ऑल्सो आई विल बी एबल टू मेक माई ओन प्लेटफॉर्म वेर आई विल बी एबल टू टीच. ठीक है. तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू इट. और अभी एग्जैक्टली ऐप डेवलपमेंट ही क्यों चूज किया. मैं तो वेब डेवलपमेंट कर सकता था, सब लोग वेब डेवलपमेंट लैपटॉप में, वही चीज़ है ना. आप वेब डेवलपमेंट ही ले लो. अगर आप मेरे कोर्सेज जो है, इफ आई सेल माई कोर्सेज ऑनलाइन, मतलब वेबसाइट में, यूट्यूब भी ले लो आप, यूट्यूब में भी कोर्सेज मिलता है. वहाँ पे लोग क्या होता है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत. एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा साइड में होगा कि बहुत सारे एनिमेशन वीडियो है, कुछ भी होगा, वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे देखना. वो बहुत टाइम तक नहीं रहेगा वहाँ पे. वो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा वेबसाइट में. ऐसे से कोई ऐप में क्या होगा कि आप लैपटॉप खोलते हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जब ऐप सिखा रहा हूँ, आप लैपटॉप खोल दो और वहाँ पे कोडिंग करो और साइड में मोबाइल रख दो. मोबाइल में टच करने की कुछ जरूरत नहीं है. बस आप मोबाइल रख लो और वहाँ पे देखते जाओ और यहाँ पे लैपटॉप में कोडिंग करते हो, और कुछ होना नहीं चाहिए. सेकंड चीज़ है कि आपको एडिक्टिव भी करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए ऐप बनाया, ताकि वेबसाइट में अगर बना था तो ईज़ी नहीं होगा कि हाँ, मैं वेबसाइट खोल के हर बार गूगल करके वेबसाइट खोलूँ फिर जाके देखना है. एडिक्टिव अगर कुछ है तो इट शुड बी ईज़िली एक्सेसिबल. और ऐप्स आर मोर एडिक्टिव दैन अ वेबसाइट. मैं ऐप को जल्दी-जल्दी खोल सकता हूँ. ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर कि हाँ, मेरे को ऐप ही सीखना पड़ेगा एट दिस स्टेज, ताकि आफ्टर 4 years I will be able to make my own platform where I'll be able to like all give my all my courses या जो भी है, I'll be able to do it. So that is why मैं बोलूँगा कि why I have chosen Android development exactly. ठीक है. फिर उसके बाद क्या टीचिंग. That's what you wanted, right? I mean, क्यों, why did I go for this startup? Uh, uh, yeah. Well, What made you let to start a startup, and also like what actually made you to execute that? Like you said that very nicely. I would like to know how many members are there in your organization helping you out and all those stuff. तो मेंबर्स में देखोगे तो माई कंपनी, इफ यू सी, इट इज रजिस्टर्ड एज ए 1 person कंपनी. तो इसका मतलब ये है कि योर कंपनी कैन हैव ओनली 1 डायरेक्टर एंड 1 एम्प्लॉय. यू कैन नॉट हैव मोर देन दैट. ठीक है. तो आई हैव नो एम्प्लॉयज बेसिकली. तो वही चीज़ है कि नहीं, Okay. आई हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स इन द 4 years. टीचिंग तो आई वाज टीचिंग एज मच एज पॉसिबल टू इम्प्रूव माई टीचिंग. इंग्लिश जो बढ़ाना था, इंग्लिश आई हैव टू मेक इट करेक्ट. सो आई गॉट दैट फ्रॉम दिस कंटिन्यूस टीचिंग इन दिस 4 years. ओके. फिर ऐसा नहीं कि अभी भी परफेक्ट हूँ, बट या आई वाज एबल टू गेट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड ऑल दिस. आई वाज एबल टू परफेक्ट इट. फिर उसके बाद जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जा था, वो इस 4 years में जितना हो सके मैं वाज ट्राइंग इट एज मच एज पॉसिबल. शायद इस कॉलेज में 5 ऐप्स बनाया होगा मैंने. तो इसमें से Wow. तीनों कॉलेज के लिए बनाया था. तो वही आई वाज एबल टू लर्न ऑल दिस थिंग फ्रॉम दिस लास्ट 4 years. ये सब करने के सब. उसके बाद जो भी था, एंड्रॉइड ऐप करना सीख मुझे मतलब पता था, एंड्रॉइड डेवलपमेंट. फिर कोर्स सिखाना भी आता था. फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग जो था, ऐप डेवलपमेंट डिज़ाइन करना था ऐप को, वो भी मेरे को फिग्मा भी मैंने सीख लिया. ठीक है. फिर जो बैकएंड आता है, बैकएंड भी मैंने सीख लिया. बैकएंड भी शायद मैंने जब 3rd year एंडिंग में था, फिर उस टाइम को मैंने बैकएंड सीखा था पूरा, खुद का बैकएंड. तब तक अगर देखोगे तो मेरे जितने भी ऐप्स थे, शायद हाँ 3rd year स्टार्टिंग में ही मैंने सीख लिया था बैकएंड. अब इफ यू लुक इनटू माय फर्स्ट ऐप व्हिच वाज योर सीनियर्स आर यूजिंग इट. तो सीनियर्स, हाँ, योर सीनियर्स आर यूजिंग 21 बैच. तो उसमें अगर आप देखोगे तो इट हैड नो बैकएंड एट ऑल. वो पूरा मतलब पूरा का पूरा जो है, इट वाज इन द क्लाइंट साइड. आपको कुछ सेंड करना है, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑपरेशन इट शुडंट हैपन इन द क्लाइंट साइड. आई वाज डूइंग इट इन द क्लाइंट साइड. ठीक है. क्योंकि मुझे उस टाइम को बैकएंड पता नहीं था. फिर जाके आगे जाके आई न्यू दैट कि मेरे को अगर करना है तो मेरे को बैकएंड भी सीखना पड़ेगा खुद का. ठीक है. इफ आई डोंट हैव टू गो फॉर अ सीएसई मेंबर इन माय टीम. ठीक है. तो आई लर्न बैकएंड. डिज़ाइनिंग मैंने सीख लिया पहले. फिर बैक फ्रंट एंड भी कर रहा था आगे. फिर बैकएंड सीख लिया. फिर टीचिंग भी आता है. अब क्या चाहिए और क्या चाहिए. पूरा सॉफ्टवेयर तो मैं So, बना रहा हूँ पूरा. टीचिंग भी, कंटेंट भी मैं दे रहा हूँ. तो अभी और कुछ चाहिए भी नहीं मेरे को टीम का हैंडल करने के लिए. आगे जाके आगे 1 या 2 साल के लिए आई विल बी एबल टू हैंडल इट टू अ लिमिट. फिर जाके आई विल हैव टू रिक्रूट पीपल. ऐसा हो सकता है कि हाँ मेरे को, और वैसे भी अगर चाहिए भी नहीं होगा, मेरे अगर कंटेंट देखोगे तो इंस्टाग्राम में अभी जो कंटेंट्स डाल रहा हूँ थोड़े, मतलब वहाँ पे पोस्ट में देखोगे तो ऑल दोज कंटेंट्स मैं लिखता हूँ, पर उसका जो एडिटिंग एडिटिंग होता है वो मैं चैट जीपीटी से कर देता हूँ. कंटेंट जो एडिटिंग होता है
I can use ChatGPT easily. ठीक है, तो Hmm. दैट इज सम एडवांटेज विच आई गेट अलॉट कि आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस एज मच वर्क एज पॉसिबल एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो काम मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम बहुत है, ऐसा नहीं कि मेरे को रस आई हैव टू रस इनटू समथिंग, मैं टाइम रनिंग आउट है, ऐसा कुछ नहीं, इतना जल्दी नहीं जा रहा है मेरे लिए। तो इफ आई हैव टाइम तो मैं सीख सकता हूँ, मैं किसी को सार दूं या किसी को वो क्यों दूं, पैसे देके ऐसे क्यों करूँ, अगर आई आई कैन डू इट देन वाई शुड आई गो फॉर इट। ठीक है, तो Hmm. आई कुड हैव Got लाइक it. वेंट फॉर डिजाइनर्स, फिर बैक एंड डेवलपर्स, वो अगर करता तो मेरे को टीम में लेना पड़ता शायद, लेकिन नो, आई हैड 4 years, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीख लिया, बैक एंड कर लिया और डिजाइनिंग भी सीख लिया, अभी Hmm. मेरे पास पूरा कंपनी मेरे हाथ में है पूरा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई Hmm. वुड से कि जितना हो सके ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाद आप स्टार्टअप करो, जितना हाँ मैं 5 लोगों को रिक्रूट कर दूंगा, डायरेक्टर बना दूंगा 4 लोगों को, ऐसा नहीं, आई वुडंट से दैट इज द गुड। मैं भी अभी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, आई शुडंट बी एबल, आई शुडंट बी गिविंग एडवाइस, बट हाँ यही चीज़ है कि आई नो दैट यू कैन डू इट, आई कैन से दैट कि हाँ यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू इट इफ यू वांट। ठीक है, मैं कर चुका हूँ, आई एम एबल टू डू इट, तो यू इवन यू कैन डू इट। डोंट गो इनटू लाइक Hmm. हाँ मैं 2-3 लोगों को ले जाऊंगा, एक बैकएंड करेगा, एक वेब डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। Okay, you can do it in this 4 years if you want. ठीक है, तो Wow, wow. That's very inspiring to start everything on your own and also handling and looking forward to manage it for many years by your own. That's very, very inspiring. एक और Okay. चीज़ है कि मतलब I, चैट जीपीटी, आई वुड ऐड दैट कि अगर आप देखोगे तो रिसेंटली yes, sir. मेरे जो बैकएंड, मेरे जो क्लाइंट साइड में सीक्वल कोड यूज़ होता है, सीक्वलाइट। ठीक है, Secret. तो सीक्वलाइट वहाँ पे यूज़ करता हूँ कोड, तो बिफोर अभी तक जितने भी था आई वाज राइटिंग इट। ठीक है, सीक्वलाइट का जो कोड था मेरे को थोड़ा सा लिखना पड़ रहा, तो आई वाज राइटिंग इट। पर अभी जो क्वेरीज लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये लिख के दो, ये वाला वो करो, इंसर्ट करो, ऐसे जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं अपने चैट जीपीटी से बोल देता हूँ। क्योंकि चैट Mm, जीपीटी से आप पूरा ये नहीं बता सकते भाई मेरे को एंड्रॉइड ऐप बना के दो, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, mm, अगर वो बना भी देगा तो आपको पीछे रहना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू नो कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यू शुड बी एबल टू, यू शुड अंडरस्टैंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट फर्स्ट इन ऑर्डर टू की लाइक कि अगर वो आपको तुमका पूरा कोड दे देगा, यू शुड बी एबल टू नो कि कहाँ पे क्या चेंजेस होगा, अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो कहाँ पे हो रहा है ये सब, तो यू शुड बी नो एंड्रॉइड। तो बट या दैट इज अ लॉन्ग वे, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करके देगा चैट जीपीटी, दैट इज अ वेरी लॉन्ग, आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू डू इट इन नेक्स्ट 10 years। ठीक है, बट या सीक्वल कोड जो है, आई थिंक SQLite and all those things, I think ChatGPT can easily do it. So I am doing that right now in the SQLite, जो मैं ChatGPT से बोल देता भाई इसका क्वेरी लिख के दो, मेरे को ये लेना है, तो आई एम एबल टू इजीली रिप्लेस, तो आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज पॉसिबल माई सेल्फ। ठीक है, that's very good. That's very inspiring. So our next question is like this. What hurdles you faced while, planning for a startup and doing side things for your tech career, other than having a non-tech branch and also have maintaining some CGPA and also studying for exams and also, yeah, in private colleges and there are a lot of exams and assignments going on. So how did you manage all the things and what would be your tips for the juniors to do the same. तो मेरा एकेडमिक जो मैंने सुना था पहले कि CGPA, Hmm. ये मेरा CGPA बहुत Mhm. कम है। ठीक है, मैनेजिंग तो वहाँ पे कुछ मैनेजिंग का था ही नहीं, वो अपने आप गिर रहा था, ऐसा होगा काउंटडाउन चल रहा था मेरा, 7 8 7 6 5 ऐसे जा रहा था। ठीक है, उसमें मैनेज की और बात ही नहीं आएगा। तो हम्म, मैन, तो वही चीज़ है ना कि 4 years में अगर मेरा देखो मेरा अचीवमेंट्स है जो भी है, इफ यू लुक इनटू इट, वहाँ पे कहीं टाइम ही नहीं मिला कि मैं एकेडमिक्स के लिए वो दूँ, इतना टाइम नहीं मिला था। हम्म, ठीक है, हम्म, तो प्रायोरिटी इज समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं किसके लिए प्रायोरिटी दूँ स्टार्टिंग में। मैं अगर एकेडमिक्स के लिए हम्म, प्रायोरिटी देता, मान लो कि 70% प्रायोरिटी देता एकेडमिक्स के लिए, तो शायद मैं बैक हम्म, एंड नहीं सीख पाता, या शायद फ्रंट एंड भी इतना अच्छा नहीं सीख पाता, या फिर मैं शायद एक ही ऐप बना पाता 4 साल में। हम्म, तो वो तो मैं, जो है मेरा जो सपना था कि 4 years के बाद कुछ स्टार्ट करना, तो वो तो मेरा वहीं पे हो जाता। मेरे को शायद उसके हम्म, बाद कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद MBA, ऐसे ऐसे बहुत सारे करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म, तो आई हैव टू फिक्स माई प्रायोरिटी यहाँ पे कि मैं किसके लिए प्रायोरिटी दूँ ज़्यादा। हम्म, ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वुड से टू पीपल आल्सो कि आपका प्रायोरिटी कहाँ पे देना है। अगर आपको काम करना है कि हाँ मेरे को प्लेसमेंट जाना है, वहाँ पे अच्छे से काम करना है, फिर ऐसा अगर है तो आई वुड से कि ज़्यादा परसेंटेज जो है प्रायोरिटी जो है गिव फॉर एकेडमिक्स। लेकिन आपका अगर हम्म, प्रायोरिटी है कि नहीं मेरे को स्टार्टअप करना है कॉलेज के बाद, तो आई वुड से कि आप एकेडमिक्स क्यों सीख रहे हो फिर इतना, यूज़ तो नहीं होगा वहाँ हम्म, पे, तो देन डू समथिंग हम्म, व्हिच विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो फिक्स योर प्रायोरिटी कि कहाँ पे।
आई वाज डूइंग प्रायोरिटी, मेरा प्रायोरिटी था मेरे को ऐप डेवलपमेंट करना सीखना, ऐप आई शुड बी एबल टू मेक एन ऐप इन आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स। मैं उसमें पूरा सीख रहा था ऐप डेवलपमेंट, सो दैट आई कैन मेक एन ऐप। तो मेरा प्रायोरिटी पूरा उसमें ही था कि गेट इनटू प्रोग्रामिंग फील्ड, जितना हो सके प्रोग्रामिंग करूँ, बैक एंड फ्रंट एंड डिजाइनिंग सब जितना भी सीखना था आई वाज डूइंग दैट। ठीक है, तो ओके। वही चीज़ है कि एकेडमिक्स इतना मैनेज नहीं कर रहा था, मेरा CGPA भी देखोगे तो अभी 7 पे है। ठीक है, बॉर्डर 6.0 6.99 कुछ है, तो अभी 7 ही बोल सकते हो। ठीक है, इतना ही है। और ओके। बाकी का जो है मतलब एकेडमिक्स तो बोल दिया, अभी क्या है बाकी, क्या पूछे थे आपने? अम, No, okay, that clears the things. Okay, so what would you say? How much a person should focus on GPA if sorry, CGPA if one is targeting the placements? How important are the GPAs? Is 7 is a good for placements? Is 8 a good? How it matters? Like the selection of cutoff selection or something like that. What do you know and what would you advise if one हाँ wants to go for placements only? हाँ, तो आई वुड से इज दैट कि मेरे बैचमेट्स जो थे वो प्लेसमेंट के लिए बैठे थे। ठीक, इसका आई एम सेइंग लाइक एज़ इफ आई डिडंट गेट टू सिट इन प्लेसमेंट एंड दैट इज़ ट्रू। मैंने अभी तक कॉलेज का पैट का जो पोर्टल होता है जहाँ पर प्लेसमेंट भरते हैं या प्लेसमेंट अटेंड Hmm. करते हैं, मैं उस साइट को अभी तक खोल के भी नहीं देखा। क्योंकि मेरे को जो Wow. पैसे होता है 7,000 को जो पैसे देना पड़ता है ना प्लेसमेंट का, 7,000 या 7,500 कुछ भी होता है, तो वो मेरे को देने का Okay. चांस नहीं मिला था कभी, क्योंकि मेरा बैकलॉग था। तो मेरे को Oh. कभी देने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर देखना कि तो बट वन थिंग आई वुड से इज दैट कि इवन विदाउट दैट आई वाज एबल टू सिट फॉर मेनी कंपनीज एंड पीपल वेयर ऑफलाइन बोल रहा हूँ, ऑफ कैंपस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई Off वाज एबल campus. टू गेट मेनी कंपनीज। ठीक है, शायद आपने ग्रुप Hmm. में भी देखा होगा कि मेरे को ये कंपनी ऐसे ऐसे आई वाज टू सेंड, क्योंकि मैं होप दे रहा था एग्जाम के टाइम पे। बहुत लोग मैं देख रहा था कि उदास थे ऐसे से, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट कि भाई देखो यहाँ पे मेरे को कंपनी मिल रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी बैकलॉग ऐसे ऐसे एग्जाम। तो वही कि इफ यू आर गोइंग फॉर टारगेटिंग कैंपस प्लेसमेंट, आई वुड से CGPA इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मेक Hmm. श्योर कि 8 के ऊपर है। ठीक है, Okay. 7.5 भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 के ऊपर लेकिन रखो, इट्स एन एवरेज, इज गुड। ठीक है, कीप इट अबव 8। 9 के ऊपर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, Okay. आपको यू यू शुड टारगेट दैट कि हाँ मेरे को पहले ही फर्स्ट ईयर में मेरे को सुपर ड्रीम चाहिए, मेरे को 50 लाख का पैकेज। भाई 50 लाख का पैकेज मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ के अकेडमिक्स पढ़ के जाओगे, आप न्यूटन फार्मूला ये सब सीख के आप जाओगे प्रोग्रामिंग करने के लिए। आप क्या करोगे वहाँ पे? आपको पूरा स्ट्रेस पड़ेगा कि हाँ मेरे को पहले वहाँ पे जाके फिर से सीखना पड़ेगा, पहले 6 महीने 1 महीना True. 1 साल पर आप True. सीखना True. पड़ेगा वहाँ पे जाके, वहाँ पे फिर से स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, पैसे तो मिल रहा Hmm. है लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा स्ट्रेस कितना कितना बढ़ मतलब कितना पड़ने वाला है मेरे पे। तो Hmm. डोंट टारगेट सुपर ड्रीम इन द फर्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। Hmm. भूल जाएंगे लोग कि हाँ सुपर ड्रीम मिला था, मेल सेंड करेंगे, 1-2 दिन के लिए आपको ग्रीट्स करेंगे, सर कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, शायद रिलेटिव्स जब जब भी Then मिलेंगे, everybody हाँ forgets. भूल जाएंगे। हाँ भाई, Hmm. लेकिन उसके बाद तुमको ही पूरा स्ट्रेस लेना पड़ेगा कि भाई मैं तो फंस गया यहाँ पे। Hmm. आई वुड से कि भाई Hmm. ड्रीम प्लेसमेंट ले लो, कुछ इतना ही काफी है। 8 तो सुपर ड्रीम के लिए बोलेंगे कि हाँ मेरे को 9 पॉइंट चाहिए, ये सब चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, आई वुड से 8 या 8.5 रख लो। ठीक है, मीडियम एवरेज रख लो, इतना काफी है। जो रेस्ट टाइम है, अगर आपको 9 पॉइंट्स लेने में इफ यू हैव टू स्पेंड 7 डेज अ वीक, मतलब कंप्लीट 1 वीक मीन 7 डेज अ वीक टू गेट 9 पॉइंट्स। अब जो आपको अगर पता है कि हाँ 9 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, 9.9 9.5 ऐसा जरूरत नहीं है, 8.5 भी काफ़ी है, तो 8.5 के लिए शायद आपको 5 डेज एस्टिमेट कर सकते हैं, 5 डेज लगेगा आपको पढ़ने के लिए 8.5 ले 5 डेज Hmm. इन अ वीक। तो बाकी का जो Hmm. 2 डेज है, आई वुड से स्पेंड दोज 2 डेज into doing something productive like programming या डिजाइनिंग, Hmm. डू समथिंग इन दैट फील्ड। तो आपको क्या होगा, आपका 8.5 भी मिलेगा। एट द एंड ऑफ द 4 years यू विल ऑल्सो बी हैविंग सम स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल्स, बिकॉज यू True. आर स्पेंडिंग 2 out of 7 days फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और 2 out of Hmm. प्रोग्रामिंग 7 days माइट लुक स्मॉल इन द बिगिनिंग एंड एवरी डे इट माइट लुक स्मॉल, बट देन आपको कलेक्टिवली देखना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि हाँ 2 दिन के बाद आपको प्लेसमेंट में बैठने वाले हो, आप 4 साल के बाद, Hmm. 3 साल के True. बाद आप प्लेसमेंट में बैठने वाले हो। 2 into 3 years, और आप बीच में मत मल्टीप्लाई कर लो कितना डेज है, तो यू विल बी That's एबल a टू। huge time. हाँ, तो Yeah. वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो Hmm. 8.5 रखो। बाकी आई वुड से फोकस C++ एक पढ़ लो अच्छे से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डेटाबेस Okay. लैंग्वेज सीख लो, मेक श्योर यू आर लर्निंग अ वन डेटाबेस लैंग्वेज। फिर उसके बाद नेटवर्क प्रोग्रामिंग, लर्न नेटवर्क प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में, शायद
पाइथन, जावा प्रोग्राम, कुछ भी लंबा नेटवर्क प्रोग्रामिंग सीख लो। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग सीख लो, यूआई यूएक्स भी सीख लो, वो इंटर्नशिप में हेल्प करेगा थोड़ा। इंटर्नशिप में शायद आपको अभी बहुत लोग सीनियर्स इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो एक चीज़ है जो यूआई यूएक्स एक चीज़ है जो आप 2 हफ्ते के अगर हॉलीडेज हैं, अगर आप उस 2 वीक्स के हॉलीडेज में आपको कुछ करना है जो आप रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ऐप डेवलपमेंट या गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वो ऐसा चीज़ नहीं है जो आप 2 हफ्ते कर लो और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा रेज्यूमे में डाल सकते हो, कॉन्फिडेंटली नहीं डाल हम्म, सकते। लेकिन यूआई यूएक्स ऐसा एक चीज़ है कि आप अगर 2 हफ्ता भी होता कंटिन्यूस, अगर आप बैठोगे 5 घंटा पूरा एक दिन का, तो 2 हफ्ता काफ़ी है। ठीक है, यू विल बी एबल टू हम्म, पुट कॉन्फिडेंटली इन योर रेज्यूमे दैट कि आपको यूआई यूएक्स पता है कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो दैट आई वुड से कि यूआई यूएक्स सीख लो, एटलीस्ट इंटर्नशिप में हेल्प होगा, जल्दी से आप पा सकते हो वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए आई वुड से जो चीज़ बहुत लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, हर चीज़ है कि भाई डीएसए आप कितने स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, हम्म, स्कूल के जो भी प्रोग्रामिंग जो जितने भी जो फॉर्मूलाज थे, अगर मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का 8th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला पूछूंगा, पता नहीं होगा आपको, याद नहीं होगा, क्योंकि हम्म, वो एक चीज़ है कि यू आर नॉट इन टच विद दैट। If you are not हम्म, in touch with formulas continuously, then you won't be able to remember it. Algorithms भी ऐसा ही है डीएसए। आप किसी एक एल्गोरिथम सोच जाओ, आपने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया होगा या फिर आपने एक साल मतलब बिफोर सॉल्व किया होगा, शायद वहाँ पे तगड़ा हुआ होगा, मतलब तगड़ा लगा होगा उस टाइम को, मतलब आप सॉल्व ही कर दिया उस टाइम को अच्छे से। लेकिन अगर आप वही एल्गोरिथम को आज देखोगे, ट्राई करोगे, तो यू विल फील लाइक ये भाई ये क्या है, ये जो बहुत नया चीज़ है। यू विल फील लाइक ये मैंने सॉल्व किया था, यू विल डाउट योरसेल्फ, क्योंकि यू हम्म, हैव टू बी इन टच विद दैट एल्गोरिथम कंटिन्यूअसली, या फिर उसके रिलेटेड एल्गोरिथम्स या थिंकिंग स्किल्स कंटिन्यूअसली शुड बी देयर इन ऑर्डर टू कीप यू इन दैट वर्ल्ड, कि आपको यू यू हैव टू सॉल्व प्रॉपर्ली। तो एल्गोरिथम जो है डीएसए एक चीज़ है, वो फॉर्मूलाज के टाइप है। यू शुड हैव कंटिन्यूअस टच इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि डीएसए कब यूज़ होगा, प्लेसमेंट के टाइम पे यूज़ होगा। प्लेसमेंट कब होगा, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में होगा। तो देन व्हाट यू शुड डू इज दैट कि लर्न डीएसए इन थर्ड ईयर, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ईयर, या फिर थर्ड ईयर के जो 6 मंथ्स के बाद, मतलब जो 6 सेमेस्टर में। ठीक है, दैट इज थर्ड ईयर एंड सेमेस्टर। तो इन 6 सेमेस्टर यू कैन स्टार्ट लर्निंग डीएसए, यू विल हैव 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में इफ हम्म, यू स्पेंड बिट मोर टाइम, इफ यू कंटिन्यूसली स्पेंड टाइम, देन यू विल बी एबल टू लर्न डीएसए। और वो चीज़ है ना कि हाँ, सिक्स जो करेक्टली 6 सेमेस्टर खत्म होगा, 7 सेमेस्टर में घुसोगे, प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। तो यू विल बी हैविंग दैट कंटिन्यूअस टच। उस 6 मंथ्स बिफोर तो प्रोग्रामिंग कर रहे थे डीएसए, तो आपका टच रहेगा, तो यू वोंट फील लाइक कि हाँ मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यू आर कंटिन्यूस डूइंग। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में लर्न कोर लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला था सी प्लस सीखो पहले अच्छे से। ठीक है, फिर सीखो कुछ डेवलपमेंट लैंग्वेज, जो मैंने बोला था कि आप जो एक मैंने बोला था बैक ट्रैक करके आप खुद चूज कर लो कि कौन सा, तो चूज दैट। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में क्या करना है, डू दैट ऑल्सो, कंटिन्यूस डू इट। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। पहले 6 मंथ सी प्लस अगर कर रहे हो और अगले 6 मंथ्स अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट इज समथिंग विच यू हैव टू डू अ लॉट, मिनिमम 1 or 2 years, देन ओनली यू विल बी एबल टू परफेक्टली लर्न सो मेनी थिंग्स। तो सेकेंड ईयर में भी करते जाओ। ठीक है, और क्या करना है कि एक और चीज़ है कि स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स। ठीक है, सेकेंड ईयर में आप अगर हैकाथॉन फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट करोगे, क्या ही कर सकते हो आप, शायद आप आइडिया दोगे, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मतलब कुछ तो बनाना हम्म, पड़ेगा प्लेटफॉर्म, कोई वो तो पता नहीं होगा, अनलेस यू आर डूइंग समथिंग इन हम्म, स्कूल। ठीक है, वो बहुत रेयर है। हम्म, तो अगर आपको कुछ पता है तो जाओ, वरना तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर में हैकाथॉन ज्वाइन करके कुछ यूज़ नहीं है, आप बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका एक हैकाथॉन में 1 मंथ लग रहा है, कुछ कुछ हैकाथॉन्स होते हैं जो 1 महीना होता है, मैंने गया हूँ कुछ हैकाथॉन। अगर आपको एक हैकाथॉन 1 महीना लग रहा है, तो अगर आप 1 महीना में 1 घंटा या 2 घंटा उसके लिए दे रहे हो कंटिन्यूस, बस आइडिया बना के देने के लिए उनको जो एक्सेप्ट हो सके, एंड देन यू गेट सेलेक्टेड। आफ्टर दैट दे आर सेइंग दैट कि इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, एक डेवलपमेंट करके दिखाओ, एक प्लेटफॉर्म बना के देखो जहाँ पे मैं इसको देख सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या करोगे, आप तो बताओगे ना मेरे को नहीं आता उस टाइम को, तो वेस्ट हो गया ना। शायद अब चले गए, आइडिया अच्छा था, लेकिन उसके बाद तो बाहर निकल गया ना। तो यू हैव टू सी दैट कि एक चीज़ है कि हाँ यू आर एबल टू लर्न इट। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ दिस पर्सन वाज एबल टू डू इट, दैट इज अ गुड थिंग, बट एक चीज़ है देखना कि ना आप टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अगर वही 1 महीना अगर आप बैठ के कुछ डेवलपमेंट सीखते, तो वो हेल्पफुल होता ना। फिर जाके सीखने के बाद यू कैन गो इनटू हैकाथॉन्स, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली हो सकते हैं कि हाँ मैं आइडिया भी अच्छा है, आई विल गेट इनटू द सेकंड फर्स्ट लेवल, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट आल्सो।
ठीक है। हम्म, तो वो एक मैं बोलूँगा कि डोंट गेट इनटू हैकाथॉन्स, ये सब चीज़ें जो आपको मेल कर देंगे यहाँ पे वहाँ पे, सब हर जगह आपको वेबसाइट में बता देंगे हैकाथॉन जॉइन करो। भाई सोच के जाओ, टाइम इज़ वेरी लेस इफ यू सी, कॉम्पिटिशन बहुत, टाइम लेस नहीं है, टाइम सही है लेकिन कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। और जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है देन यू हैव टू नो हाउ टू यूज़ योर टाइम वाइसली। तो यू हैव टू नो कि किस टाइम को क्या चीज़ करना है। सब चीज़ अगर करना है लेकिन अगर गलत टाइम पे करोगे तो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नो व्हेन यू हैव टू डू true. परफेक्टली टाइम। तो वो बोलूँगा कि हैकथ सेकंड ईयर में हैकाथॉन जॉइन करना स्टार्ट कर लो। ट्राई टू पार्टिसिपेट इट, ऐसा नहीं है कि जीतना है, बस एक आइडिया मिलेगा कि हाँ कंपटीशन कैसा है, थिंकिंग स्किल्स कैसे हो सकता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में क्या कर सकते हो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करो, लेकिन प्रायोरिटी अब क्या होना चाहिए, रिड्यूस द अमाउंट यू स्पेंड इन दिस हैकाथॉन्स एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज द प्रायोरिटी फॉर योर डीएसए। ठीक है, हम्म, तो आप फोर्थ ईयर में जाओगे, प्लेसमेंट में बैठोगे, वो देखेंगे भाई ये तो ये लैंग्वेज सीखा था, ये लैंग्वेज सीखा था, हैकाथॉन गया था, डेवलपमेंट आता है और अभी डीएसए भी कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बस आप डीएसए पार्टिसिपेट करोगे, वो करोगे, उसके बाद शायद आपको कंपनी मिल जाएगा, लेकिन कंपनी में जाके आपको डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा। आप किसी भी सीनियर को पूछ लो, जो भी अभी डेवलपमेंट में है, एचडी रोल में है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ भी कंपनी चलेगा, डजेंट मैटर विच कंपनी, वहाँ पे कितने लोग डीएसए यूज़ कर रहे हैं ये पूछ के देखो। बहुत लोग बोलेंगे कि हम्म, नहीं, यूज़ नहीं करते हैं। DSA is, I don't know why they, but it's just for thinking skills, logical thinking, how you are able to solve. That's why. Okay. डेवलपमेंट में वहाँ हम्म, जब जाओगे कंपनी में, वहाँ पे DSA इतना यूज़ नहीं होता, बस फुली डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम्म, वही चीज़ है कि मतलब डू थिंग्स एट अ राइट टाइम, वही चीज़ बोलूँगा कि CGPA 8.5, that's good enough, then follow whatever if you want, I mean whatever I've said, if you want to like. yeah, got it, got it. Do you know any specific benchmark actually? Like 8.5 is the, like, if I have 8.5 as CGPA, then I can sit for 95% of companies, something like that, as we have heard. Like, do you know exact data or something like that? हाँ, तो वो एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो मेल्स आते हैं कॉलेज की जो, Hmm. तो वहाँ पे मुझे लगा था कॉलेज कंपनी प्लेसमेंट स्टार्ट होने के बाद मुझे लगा कि भाई मेरा 7 पॉइंट है, तो शायद 7 पॉइंट के Hmm. जो कंपनी से आएंगे, एलिजिबिलिटी जो लेगी बहुत कम होगा। ठीक है, Hmm. फिर मैं देखा कि मैं जब बैकलॉग लग गया तो मेरे को लगा भाई छोड़, Hmm. यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 था। ठीक है, बट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि दे शुडंट हैव बैकलॉग्स। ठीक है, तो ऐसा Oh. नहीं है कि ओनली 7, मतलब मैं जब बोला था कि 8.5 रखो, ऐसा नहीं है कि हाँ ओनली 8.5 पीपल टेक ओनली 8.5, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 8 एंड 8, ऐसा नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ कि Hmm. सेफर साइड भी एक है। ठीक है, एक सेफर साइड में बोल रहा हूँ। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ कि 8 एंड 8.5 इज गुड एनफ। देखिए उससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है, 8 एंड 8.5 इज गुड एनफ, यू विल गेट इनटू अ गुड ड्रीम कंपनी, दैट इज गुड एनफ इफ यू हैव अदर स्किल्स आल्सो, आई एम सेइंग। ठीक है, ऐसा नहीं Hmm. कि 8 पॉइंट Hmm. कर लो, आपको सी प्लस भी नहीं आता, HTML कुछ भी नहीं आता, तो ऐसा नहीं होगा। True. ठीक है, Um, 8.5 is good enough, but have a good projects inside. Projects is very important. Projects नहीं करोगे, बस DSA सॉल्व करोगे, बोलोगे मेरे को लीड कोड में 5 स्टार 6 स्टार, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बस इंटरव्यू राउंड क्लियर कर पाओगे, उसके बाद जाके आपको पता है वहाँ पे डेवलपमेंट। तो इवन 6 पॉइंट इस एलिजिबिलिटी देखोगे तो देयर आर सो मेनी कंपनी, मेजॉरिटी तो बोलूँगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है, मैंने देखा था जितने भी मेल्स में अभी तक खोला, 6 पॉइंट्स था, मैंने एलिजिबिलिटी 6 पॉइंट्स थे। ठीक है, बट एक चीज़ है कि oh. कॉम्पिटिशन जब बहुत ज़्यादा है, जब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तब एक ही तरीका होगा कि रैंक करने के लिए। वो ऐसा नहीं कि अगर Hmm. 6000 लोग हैं, मान लो कि 100 Hmm. लोग हैं, ठीक है, तो Hmm. 100 लोगों में से सबका रिज्यूमे देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो Hmm. सॉर्ट आउट तो करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, एक तो एक ईज़ी तरीका होगा कि नंबरिंग, न्यूमेरिक ऐसा। तो न्यूमेरिक क्या है? Hmm. सीजीपीए न्यूमेरिक है। तो शायद Hmm. न्यूमेरिक में बोलेंगे कि हाँ, जिसका 8 है ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर वहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर उसमें से जाके रिज़्यूमे देखेंगे। एक ईज़ी तरीका है जो हो सकता, अगर मैं होता तो मैं ऐसा कर सकता। अगर मैं सीजीपीए पे मैं फ़ोकस करता हूँ ऐसे से। ठीक है, मैं फ़ोकस नहीं करता सीजीपीए, मैं बस वो ही बोल रहा हूँ कि इफ दिस इज़ वन वे माइट बी हैपनिंग इन कॉलेज कि सबको सीजीपीए पूछेंगे और उसमें से सीजीपीए इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी ईजियर टू सॉर्ट आउट पीपल फ्रॉम ग्रेड्स। फिर उसके बाद Hmm. क्या होगा कि बहुत सारे वहाँ पे छूट जाएंगे, तो अभी कम हो जाएगा कंपेयर करना, फिर जाके इंटरव्यू लेना ईजी हो जाएगा। 100 से कंपेयर करोगे तो 50 अगर छूट जाएंगे, फिल्टर होके आ True, जाएंगे, true.
इट्स मच ईजियर टू अटेंड ऑल द 50 इंटरव्यूज कंडक्ट करना थोड़ा ईजी होगा। तो आई वुड से कि CGPA इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन यार 8.5 रखोगे तो आप सेफर साइड में रहोगे ऑलवेज, Yeah. ठीक है। Got it. Got it. ऐसा नहीं होगा कि लिमिट ही 9 रखेंगे, कोई ऐसा नहीं रखेगा 9, 8 इज कंपेरेबल। अगर 6 रख रहे हैं सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, देन 8 शुड बी अ वेरी गुड सेफ प्लेस, ठीक है। तो या दैट्स आई वुड से कि CGPA 8 इज, मतलब 6 इज, आई मीन यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। और ऑफ कैंपस भी है, ऑफ कैंपस जॉब्स भी ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव, मतलब और अब वही बोल रहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। इफ यू आर सिटिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट, शायद बहुत कुछ हो सकता है उस टाइम पे दैट विल अफेक्ट यू और मेक यू, नो आई मीन लाइक यू, इट नॉट अलाउ यू टू सिट फॉर कैंपस प्लेसमेंट। जैसे आपको हो सकता है कि एग्जाम दे रहे हो और आपको कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया या कुछ हो गया जिसके कारण आप एग्जाम नहीं लिख पाए और उसके कारण आप प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाओगे, बैकलॉग लग गया, प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाओगे। वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा डेंगू हो गया था, मार्क खराब हो गया था एग्जाम में एक बहुत, तो फिर उसके बाद प्लेसमेंट नहीं बैठ पाया था, ठीक है। तो अगर मैं, तो ऐसा चीज़ है कि मेरा तो ऑलरेडी ग्रेड खराब था, ठीक है, मैं बैठ के भी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है इतना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वही चीज़, अगर एक बंदा जो 9 पॉइंट्स लेने में बहुत मेहनत कर रहा है, 3 साल तक मेहनत किया है, पूरा दिन रात बैठ के पढ़ाई किया 9 पॉइंट्स लाने में, और उसका लास्ट मिनट में अगर उसका तबीयत खराब हो गया, ठीक है, 1 2 3 एग्जाम्स छूट गया, बैकलॉग लग गया उसका भी, ठीक है, शायद रीफैट भी दे सकता है हाँ, लेकिन कुछ टाइम हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ हो सकता है कि बैकलॉग ऐसा लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों लगा, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने मेहनत किया 3 साल तक 9 पॉइंट लाने में, अभी बैकलॉग लग गया, अब मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट में, तो ऑफ कैंपस तो चांस ही नहीं है, क्योंकि बंदा पूरा 9 पॉइंट लाने में बैठा था, एकेडमिक्स पढ़ रहा था पूरा, ठीक है। तो ऑफ कैंपस जाएगा तो प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि भाई तू प्रोजेक्ट्स दिखा क्या है, ठीक है, क्या क्या सीखा है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, वो सब पूछेंगे, ठीक है। तो वो बेचारा नहीं है, उसका बच्चा अभी बचा है बस हायर स्टडीज करना, खत्म, हायर स्टडीज जाओ, ठीक है। आई वुड से कि फिक्स मत करो कि रखो, जब भी कर रहे हो 8.5 जब ला रहे हो, 8.5 अगर फोकस कर रहे हो, 8 या 8.5, यू विल हैव गुड स्किल्स आल्सो इफ यू आर फॉलोइंग व्हाट आई सेड, प्रोग्रामिंग स्किल्स प्रोजेक्ट्स होगा उसके, इफ यू आर फॉलोइंग दैट, तो आपका एक ऑप्शन होगा कि हाँ ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे को प्रोग्रामिंग आता है, आई कैन प्रूव इट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऑलवेज हैव अ, कि हाँ मैं इस साइड भी जा सकता हूँ अगर कुछ हुआ तो, यहाँ पे डोंट डिपेंड, बी इंडिपेंडेंट, मैं वही बोलूँगा, ठीक है। Yeah. That's a very lovely answer, Anubhav bhaiya. My next question would be, uh, what you did with your off-campus placements which you got, or off-campus offers which you have applied for and got, and how did you decided that you won't go for that and in fact try running your own startup? हाँ, तो स्टार्टअप स्टार्ट करना कंपनी अप्लाई करने के बिफोर भी था। द रीज़न व्हाई स्टिल अप्लाई फॉर, ऐसी चीज़ है कि कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली यू डोंट हैव द फंडिंग्स, ठीक है। फंडिंग का एक प्रॉब्लम होगा, सपना बहुत होगा, शायद आपकी स्किल भी होगा इतने सारे, लेकिन जब फंडिंग का बात होता है तो इट्स अ बिग चैलेंज, ठीक है। Yeah. तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड अ सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आई हैड टू जॉइन द जॉब फॉर दैट रीजन, ठीक है, कि आई हैव टू लाइक फाइंड अ जॉब कि मेरा जो फंडिंग हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा चीज़ है ना कि यहाँ पे द एडटेक विल, अभी जब आप न्यूज़ में देखोगे तो एडटेक सब बोल रहे हैं कि मेरा तो एडटेक नहीं है, ऐसे सेट इट इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, एडिक्टिव प्लेटफॉर्म ऐसे बोलूँगा, लेकिन न्यूज़ में देखोगे तो हर जगह सुनाई देगा कि एडटेक फेल हो रहा है। इनफैक्ट बाईजूस आप देखोगे तो अभी रिसेंट न्यूज़ में फेल हो रहा है, बहुत सारे चल रहा है बाईजूस में अभी अंदर। तो ऐसा अगर न्यूज़ सुनोगे और आप जाके बोलोगे पेरेंट्स को कि नहीं मेरे को भी एक एडटेक बनाना है बाबा, और न्यूज़ में देखेंगे वहाँ पे एडटेक गिर रहा है, तो बिलीफ चला जाएगा आपके कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो अकेला है, अकेला कर रहा है, ऐप बना रहा है, एक मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा, आप शायद बिलीव करोगे, आप, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बिलीव नहीं करेंगे, पेरेंट्स बिलीव करेंगे, लेकिन यही चीज़ कि पेरेंट्स का वो होता है ना, दे वांट टू सी यू सिक्योर, वो डोंट Yeah. वांट टू सी यू सफर एंड ऑल थिंग्स। तो उसके लिए आप वही चीज़ बताएंगे वो लोग, मतलब पेरेंट्स वही चीज़ बताएंगे तुमको जो आपको सिक्योर बना सकता है। दे डोंट वांट यू टू गो थ्रू ए मच हार्डर और डिफरेंट वे, क्योंकि उनको लगता है, उनको लगेगा कि हाँ ये वहाँ पे अगर अलग से रास्ते में जाएगा तो देन व्हाट विल हैपन, वेदर ही विल बी एबल टू सर्वाइव, वेदर दैट शी विल बी एबल टू सर्वाइव, वो एक चीज़ होगा। लेकिन अगर वही चीज़ है कि उनको चिल्ड्रंस को जो तरीका जो देखते हैं सोसाइटी में, जो है कि हाँ मैं हायर स्टडीज़ करो या फिर MNC में घुसो, उसके बाद सेफ सिक्योर रहेंगे,
तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ बाकी लोग सिक्योर है तो इसको भी वहाँ पे पहुँचा देते हैं ताकि वहाँ पे सिक्योर हो सके। दैट इज़ व्हाट दे वांट एट द एंड, कि सिक्योर रहें। या तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग से नहीं देखते होंगे, शायद उनको लगेगा कि हाँ ये नहीं उठ सकता है ऐसे से, क्योंकि वो यू आर दे आर नॉट सीइंग ऑफ और दे हैव नॉट वेंट थ्रू व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। ठीक है, Yeah. तो दे वोंट बिलीव इट। So it is not, I wouldn't say that is wrong from their side or it is wrong from the parent side also. Okay, it Mm. is wrong if you don't make it come true. Okay, if you really believe in it then make it happen. That's what I would say. ठीक है, तो वही चीज़ है कि सो आई बिलीव इट, सो दैट्स व्हाई कि अभी चीज़ है कि अभी यहाँ पे अगर कुछ करना है, ठीक है, आई डोंट वांट टू रिस्क माय फैमिली पेरेंट्स मनी एंड ऐसे, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, खुद कहीं से जॉब ले लूँगा ऑफ लाइक ऑफ कैंपस में, फिर वहाँ से जो भी पैसा है उसको मैं फंडिंग करूँगा मेरे स्टार्टअप में, जितना हो सके उसमें स्टार्टअप में डाल दूँगा। तो इसमें क्या होगा, रिस्क नहीं होगा। Oh. ठीक है, तो अगर Oh. वैसे भी अगर करता भी शायद 2 साल भी हायर स्टडीज़ करता होगा पेरेंट्स के अनुसार, अगर मैं करता, तो हायर स्टडीज़ में पैसे बर्बाद Mm. होते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे बैठ के True, आप true. हायर स्टडीज़ में 2 साल में क्या करता, पैसे तो नहीं आता मेरे पास। आई वुडन्ट बी इनकम हाँ. लाइक जनरेटिंग और रेवेन्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, हायर इनकम, हायर Mm. स्टडीज़ करता तो मेरा सैलरी नहीं होता उस टाइम को। So the same thing, I can consider that this next 1 year, I can consider that I'm doing 1 year course or 1.5 year course where I'm not getting income or where I'm not getting any salary. ठीक है, जो भी पैसे आ रहे Mm. हैं I'll put it into startup. ठीक है, तो Mm. by this way I'll So, just assume yeah, so you are now doing a job as well as running a startup, right? हाँ yeah exactly. Yeah, that's very, very So what inspiring. I do is that ki I go to like so as I said, uh, I cannot if this goes out. Okay, if I say the company name and if it goes out, it will be a problem because if you are starting a startup, you cannot work in a company. That's one rule. Okay, if you have a Mm. startup, you cannot legally work in another company or you cannot start a business. ठीक है, Wow. ओके, तो मेरे को लग गया मैं जितने भी इंटरव्यू दिया था, बहुत सारे जो थे, मतलब आउट ऑफ 10 कंपनी जब ऑफलाइन आए मेरे सारे क्लियर हो गए थे। Mm. ठीक है, सबके सब बस ये पूछ रहे थे मेरा प्रोजेक्ट क्या था, कब किया था, ऐसे से पहले क्वेश्चन भी जब कॉल करके पूछे थे कि आपने कौन सा ऐप बनाया था, इसको इस लैंग्वेज में बनाया था, ऐसे ऐसे सब बस मेरा ग्रेड्स कुछ मेरा अगर इनफैक्ट रेज्यूमे देखोगे, if I show you my resume, if you look into my resume, I have never mentioned Mm. any of my grades there. मैंने ग्रेड्स मेंशन ही नहीं किया Oh. था वहाँ, अभी तक मेंशन नहीं करता ग्रेड कहीं पे। ठीक है, Mm. what I do in my resume is that I point out or list out all my achievements, all my accomplishments, all my projects. Okay, Mm. I have all my strengths, that is my projects। मेरा पूरा मेजॉरिटी अगर देखोगे तो मेरे रेज्यूमे पूरा प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, Mm. ग्रेड्स वगैरह कोई नहीं देखता वहाँ पे, मेरे जितने भी कंपनी में आया वहाँ पे कोई भी ग्रेड नहीं पूछा। इनफैक्ट ये लोग मेरे ग्रेड शीट भी नहीं लिए, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ग्रेड शीट भी नहीं लिया उन्होंने, कुछ नहीं लिया मेरे से। उन्होंने बोला भाई हमको घंटा फ़र्क Mm. पड़ता है, बस हमारा काम कर दो ढंग से। ठीक है, Mm. तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि आई डू द वर्क दैट, वो भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट ही है, वो जो काम कर रहा है एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, तो आई गेट टू लर्न समथिंग मोर दैट। एंड ऑल्सो मैं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा वहाँ पे मैं खुद का कोड लिख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मेरा जो खुद का जो प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं अपना लैपटॉप लेके जाता हूँ या अपना कोड वहाँ पे खोल के वहाँ पे, ऐसा नहीं, मैं अपना कोड मेरे लैपटॉप में खोलता हूँ, कहीं और नहीं खोलता, तो Mm. प्राइवेट रखता हूँ पूरा। तो व्हाट आई डू इज़ दैट कि उनके कंपनी में जाके कभी-कभी जो टाइम लग होता है 1 घंटा, तो आई राइट द लेआउट कोड। ठीक है, जो मेरा Mm. यूआई का जो कोड होता है कैसा होना, तो मैं वहाँ पे जाके लिख देता हूँ, फिर मैं उसको कॉपी करके मेल कर देता हूँ मेरे अकाउंट में। ठीक है, फिर घर आके उसको कॉपी करके मैं अपने कोड में डाल देता हूँ। ठीक है, तो फ्री टाइम पे या कभी-कभी Oh. जब टाइम होता है लंच जल्दी खत्म कर देता हूँ, तो आई राइट द लेआउट फॉर माय कोड। ठीक है, फिर घर आके उसको मैं अपने इसमें डाल मैं घर यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे पॉडकास्ट नहीं करता अभी शायद, तो मैं क्या करता बैठ के डिज़ाइनिंग करता नोटबुक में कि कैसा मेरा लेआउट होना Mm. चाहिए, वो सब कैसा होना चाहिए, प्लान करके रख देता हूँ। वहाँ पे जाके Mm. प्लानिंग का टाइम नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ जल्दी-जल्दी कोड लिख देता हूँ वहाँ पे जाके, कभी फ्री होता है। फिर यहाँ पे आके अगले दिन मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सैटरडे संडे को बैठ के पूरा हार्डकोर प्रोग्रामिंग जितना भी हो सकता है मैं करता हूँ। आते वक़्त जितना भी हो सकता है ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ मेट्रो में, तो आते वक़्त जितना भी हो सके तो आई ब्रेनस्टॉर्म कि मेरा आइडिया कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, फिर जो डेटा हैंडल स्ट्रक्चर या वो जो भी है बहुत सारी चीज़ें, आई कम ऑन द वे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, आई थिंक अबाउट इट अ लॉट। दैट्स हाउ आई मैनेज इट। फंडिंग Wow, भी wow. वही Your work ethic is really थैंक यू। okay. So our next question will be like this. Uh,
what we can expect from your platform and what our viewers can expect from this platform. And what would you like to say as you wind up this session? Anything, any message, anything you would like to share? You can. हाँ, तो व्हाट आई वुड से इज दैट कि मेरे प्लेटफॉर्म में जो है दैट समथिंग व्हिच अभी तक जितना भी मैं काम किया हूँ कमिटमेंट पे काम करता हूँ, तो दिस ऑल्सो आई कैन गिव अ कमिटमेंट दैट कि दिस विल बिकम अडिक्टिव। ठीक है, तो मेरा टैगलाइन भी देखोगे तो कंपनी का अभी तक कहीं लिखा है, मैं टैगलाइन फॉर माई कंपनी इज एफिशिएंट बाइट्स वेयर प्रोडक्टिविटी इज मेड एडिक्टिव एडिक्टिव। ठीक है, तो दैट्स माई टैगलाइन। तो आई विल make sure that it gets an habit and it becomes an addictive in this 4 years of anyone's college journey, or even beyond the college 4 years also if you want, it will become a that कि हाँ मैं खुद खोल के मैं कुछ सीखना चाहूँ, it will become like that, Mm. no one will force you, that should be something in that will make pull you। तो अगर ये बहुत सारी चीज़ें अभी तक ऐसे बहुत सारी कंपनीज नहीं है, इंस्टाग्राम भी आई वुड से इज नॉट राइट इन दिस फील्ड, बट देयर इज वन app which people use a lot. I can't say it, but if I say it, people will start thinking that way. Okay, but एक ऐप है Okay. जो बहुत लोग यूज करते हैं, it has nothing much in it, but there is one small feature in it that makes people addictive. Okay, तो Mm. एक चीज़ है कि वही बोला ना, क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको कैसे यूज़ Mm. कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी जगहों से आइडिया लिया, खुद का आइडिया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें विच आई कंबाइन इट टुगेदर। ठीक है, एक होता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, मैंने कहीं कहीं से मैंने ऑब्जर्व किया, एस्पायर मतलब कहीं से इंस्पायर हुआ हूँ। फिर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ऐसे मार्केटिंग के लिए आई कैनॉट, ठीक है, आई कैनॉट स्पेंड मच टाइम इन मार्केटिंग, तो आई वुड लाइक टू Mm. डू समथिंग डिफरेंट इन माई कोड दैट हेल्प्स इन मार्केटिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, या Oh, कोड या wow. फिर डिज़ाइन ऐसे करूँ जो ऑटोमेटिक मार्केटिंग करे। ओके, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है इट शुड बी दैट एडिक्टिव। ठीक है, कि ऑटोमेटिक मार्केटिंग Mm. हो जाए ऐसे। तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से मैंने कहीं कहीं कुछ आइडियाज़ लिया हूँ, फिर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, फिर कंटेंट पर्सपेक्टिव से। कंटेंट का जो पर्सपेक्टिव है आपको तो शायद बहुत लोगों को मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब से पता होगा, कंटेंट का जो मतलब वो होता है, मतलब कंटेंट को हाउ यू आर प्रेजेंट मीन कंटेंट पॉइंटर्स जो है, या फिर आपने ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड अगर मेरे इंस्टाग्राम में जाके देखोगे कुछ कंटेंट्स, तो कंटेंट पर्सपेक्टिव से आई ऑलरेडी हैव दैट थिंग्स कि हाँ मैं कंटेंट को कैसे आई कैन मेक इट इंटरेक्टिव एंड आई मीन इंटरेस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो all these things I try to combine it and make sure that I'm making a platform where these things get addictive. Okay, that's what I can Mm. say all the time. And then I would say that uh, the fees and all those things also will be very less. Okay, and that's really because the reason is because I'm the only person who's handling it. अब Mm. बड़े-बड़े एडटेक लो ऐसे, उनके पास बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पैसे देना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर्स को पैसे देना पड़ेगा, मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर सबको पैसे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं खुद बैकएंड करता हूँ, खुद फ्रंट एंड करता हूँ, सब डिज़ाइनिंग के लिए शायद मैं कभी न कहीं आगे जाके मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ है कि मेजॉरिटी चीज़ मैं अगर हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? तो वही चीज़ आई डोंट हैव टू पुट द कोर्सेज़ एट अ हाई प्राइस सो दैट आई डोंट हैव टू पे एनीवन। ठीक है? तो मैं कम प्राइस में भी सेल कर सकता हूँ ऐसे। या प्राइसेस विल बी लेस, ठीक है? बट हाँ, I wouldn't make it totally free also, because I would say is that कि if you really want something, क्योंकि I would say मैं जितने भी मेरे पास जितने भी पैसे आए थे मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम पे, जितने भी थे, मतलब पापा मम्मी से कभी आता था, नाना नानी से, दादी से, मतलब जब भी मिलता था या फिर रिलेटिव से जब भी मिलता था, सब वो पैसे देते हैं ऐसे, होता है सबको देते हैं पैसे, सबके फैमिली में होता है पैसे देते हैं ना। तो मेरे को भी Mm. जब पैसे मिलते थे ऐसे, तो आई वुड इन्वेस्ट दैट इन लर्निंग कोर्सेज। ठीक है, जितने भी Mm. कोर्सेज थे, आई स्पेंड इट एज मच एज पॉसिबल इन लर्निंग कोर्सेज। ठीक है, दैट्स बिकॉज़ मेरे को पता है कि मैं अगर यहाँ पे एक कोर्स सीख रहा हूँ 500 का कोर्स में, मैं उसको अगर अच्छे से सीख सकता हूँ, देन आई विल बी एबल टू ईदर सेल इट टू समवेयर, आई कैन यूज़ दैट स्किल टू मेक समथिंग फ्रॉम व्हिच आई कैन गेन लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो एजुकेशन, नॉलेज, प्रोग्रामिंग स्किल, ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं दैट आई नो दैट शुडंट बी गिवन फॉर फ्री। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं सबको फ्री में, मैं एट वन स्टेज आई वुड गो टू विलेजेस एंड देन टीच फॉर फ्री एंड ऑल दिस, आई वुड डू इट। बट जहाँ पे Mm. अगर आप प्राइवेट कॉलेज लो, वीआईटी या ऐसा ऐसा कर कॉलेज में, पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड इट। ठीक है, तो मैं उनके लिए फ्री देके कुछ नहीं करने वाला, तो दे शुड बी एबल टू, तो मैं उनके लिए, अगर इफ आई नो दैट यू कैन मेक एन लाइक, अभी अगर देखोगे तो बहुत सारी जो है ऐप डेवलपमेंट चल रहा है, थ्रेड देखो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने जीरोदा देखो, तो सब ऐप डेवलपमेंट है।
तो ऐप से एक प्लेटफॉर्म बना के कितने आगे जा रहे हैं, हाउ आर दे एबल टू। Hmm. इंस्टाग्राम का यूजर देखोगे तो इंडिया में है सबसे ज्यादा। इमेजिन इफ दैट वाज डन बाय समवन इन इंडिया, ओके, Hmm. तो हाउ मच बिग दैट वुड हैव। मतलब वही चीज बोल रहा हूँ ना कि ऐप डेवलपमेंट इज अ वेरी बिग, ठीक है। तो if I know that if I teach you app development and you can earn a lot of money from that, then it's a loss for me now. I'm not, I'm doing it for free. So why would I do it? So if, but I know that app development is very hard. Okay. And I know that if you able to manage it and if you're able to learn it also from me and you are able to make a business out of it tomorrow, then I should be charging you money, right? Because तुम business बना रहे हो, I'm helping you make a business because I gave. So that's the reason why I would say is that such skills, programming skills, should not be given for free. People who really want it. अगर आप, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त के पास भी 1000 रुपीज है, एंड you see that one course cost you 1000 rupees, okay, and that other person is more of a party minded, उसको बस पार्टी करना है, ठीक है। now it matters on where you spend it, ठीक है। जो दूसरा आदमी था वो 1000 रुपये जाके पार्टी कर सकता है वीकेंड्स को जाके, ओके, बट यू चोज टू, हाँ मेरे को पार्टी नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है मैं कल को पार्टी करूंगा भूल जाऊंगा एक महीने के बाद, ऐसे लेकिन मैं अगर वही 1000 रुपीज़ को कहीं और स्पेंड करूंगा, जैसे कहीं सीखने के लिए, एंड्रॉइड कोर्स ऐसे सीखने के लिए, आई नो दैट कि आगे जाके एट वन पॉइंट आई विल बी एबल टू मेक एप्स एंड आई विल बी एबल टू सेल इट फॉर पीपल। तो वहाँ से आई विल बी एबल टू जनरेट मोर मनी, 1000 से ज़्यादा मैं जितना मनी इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा मनी मैं पा सकता हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई फील दैट कि सब लोग नहीं करेंगे ऐसे, कि ओनली फ्यू पीपल विल बी देयर हु विल बी रेडी टू से दैट कि हाँ मैं कल को पार्टी नहीं करूंगा, मैं जो पैसे बचाए मैं इसको कोर्स सीखने के लिए करूंगा, ठीक है। तो ओनली Hmm. फ्यू, बट आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग दैट सच पीपल, क्योंकि वही जो सैक्रिफाइस करेगा, इफ समवन सैक्रिफाइस समथिंग एंड डस इट, देन ओनली दे विल बी एबल टू अकम्प्लिश देयर ड्रीम्स। मेरे भी अगर देखोगे तो माई थिंग्स, इफ यू सी, लोग बोल रहे हैं कि भाई तू बहुत मेहनत कर रहा है, कॉलेज में बैठ के 4 साल में, यू आर जस्ट 23 ईयर्स, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड, 22 ईयर्स, आई मीन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स, ऐसे ऐसे बहुत लोग, मेरे दोस्त खुद की बात में करते हैं। इज इट रियली दैट आई एम डूइंग हार्ड वर्क्स एंड दे आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क्स? वो भी कंपनी में बैठे हैं अभी 10 मिनट, इज दैट they are not doing hard work and I am doing hard work? ऐसा कुछ नहीं है। everyone at one point or any sometime they will be doing hard work, ठीक है। कोई शायद कम कर रहा होगा, कोई शायद ज़्यादा कर रहा होगा, बट कभी और टाइम पे वो ज़्यादा कर रहा होगा, तो इट डजेंट मैटर, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज दैट कि आप सेक्रीफाइस कहाँ पे कर रहे हो। दो रास्ता है, एक रास्ता में सब लोग जा रहे हैं जहाँ पे सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे रास्ते में आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यही चीज़ है कि दूसरा रास्ता लेने के लिए रिस्क है शायद, वहाँ पे बहुत लोग नहीं जाते हैं, रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा वही मेहनत लगेगा जो आप शायद उस, जो बहुत लोग जाते थे उस रास्ते में मेहनत करना पड़ेगा। वही अब जो दूसरा रास्ता लिया जहाँ पे लोग बहुत, वो होता ना कि एक पोएम था, रोड लेस टेकन या कुछ तो एक था, Yeah, पाथ yeah. लेस टेकन, हाँ, Road not taken. रोड नॉट टेकन, हाँ। तो यार वही है यहाँ पे कि सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट फर्स्ट कम सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करने के बाद यू चूज ए पाथ कि हाँ मेरे को ये वाला रास्ता लेना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि मेरा जो सपना है थोड़ा अलग है कंपेयर टू अदर्स। तो जब सपना अलग है सबसे अलग, सब दूसरों से, तो आपको थोड़ा अलग रास्ता लेना पड़ेगा। अलग रास्ता लेने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एट द एंड इट कम्स डाउन टू योर सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस एक रास्ता लेने के बाद आपको वहाँ पे भी मेहनत ही करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क यहाँ पे या फिर वहाँ पे, कहीं पे भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि सेम वे फॉर एक्वायरिंग स्किल्स ऑल्सो यू हैव टू सैक्रिफाइस कुछ चीज़ें। शायद आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपके खेल कूद के टाइम पे, या फिर आपके पार्टी टाइम मैनेजमेंट, मतलब शायद आपको बाहर घूमने के लिए शायद वो सब काटना पड़ेगा। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट समथिंग विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, विच आई is the every day, each the day I used to cancel the tickets, cancel the movie plans, yeah, with the day I used to cancel plans to hang out with my friends, okay, every day which I used to cancel was the days which took me one step closer to my dreams and also one step ahead of other people, ठीक है। बिकॉज मैं जब एक दिन में अगर काट के मैं बोलूँगा कि मेरे को बाहर घूमना नहीं चाहिए, मैं घूमना नहीं, मैं आज सैटरडे संडे को घूमूंगा नहीं, मैं बैठ के पूरा प्रोग्रामिंग सीखूंगा ऐसे ऐसे, so at indirectly that one day or 2 days has taken me one step closer to my dreams and also one step ahead of my other friends, क्योंकि वही है ना कि बाकी लोग मेरे पार्टी जाके सैटरडे संडे को पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आई एम गेटिंग वन स्टेप अहेड ऑफ देम, ठीक है, एंड वन स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम्स। तो दिस इज वेरी, spend as much time as possible in this thing and then spend less money in some things that don't give you a return, ठीक है, जैसे खाना,
एक्सपेंसिव गजीबो में जाके ऐसे भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ छोटा सा खा लो, बन ब्रेड ब्रेड बटन ऐसा कुछ भी खा लो भाई, खाना है बस इतना, ठीक है। तो एंड देन गो बैक टू हॉस्टल, डू वॉट एवर यू वांट, मतलब जो भी करना है प्रोजेक्ट्स भी, दैट्स इट। डोंट स्पेंड मच मनी इन ऑल दिस थिंग्स, डोंट हैंग आउट अ लॉट, आई मीन अनलेस यू नो इट्स। ऐसा नहीं बोलूंगा कि दोस्ती मत रखो, दोस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्त सब अच्छे थे, दे अंडरस्टूड माई ड्रीम्स एंड ऑल द थिंग्स, सो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, ठीक है। एंड सेकंड थिंग Hmm. अबाउट माई एन्जॉयमेंट, पीपल विल से दैट कि हाँ मैं एन्जॉय नहीं करता हूँ शायद, मैं घर इंट्रोवर्ट, ऐसा नहीं है। मेरे फर्स्ट ईयर मेरा जो लॉकडाउन में गुजरा था, सब बहुत सारे जो टाइम था लॉकडाउन में गुजारा था, लेकिन जो फर्स्ट ईयर लॉकडाउन के बिफोर जो 1.5 ईयर था, तो दैट वाज ऑफलाइन। एंड उस 1.5 ईयर्स में, इवन नॉट 1.5 ईयर, सॉरी, इट वाज वन लेस देन 1 ईयर बिफोर लॉकडाउन, ओके, बस 8 मंथ्स, शायद 8 मंथ्स या 7 मंथ्स ही मैंने था ऑफलाइन में। इन दैट 7 मंथ्स इटसेल्फ आई वाज एबल टू हैव सो मच फन। इतना इतना मस्ती किए थे कि हम हमारे घर में पोस्ट आ गया था कि आप 3,000 का फाइन दो कॉलेज से। बहुत सारे कांड किया था हमने कॉलेज फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो मस्ती तो बहुत हाँ। किया था, ऐसा नहीं है कि भाई मस्ती नहीं किया। मेरे पास अभी भी फाइन पड़ा है, दिखा सकता था अभी भी। तो फाइन अभी भी सेव करके रखा हूँ, 3,000 का फाइन। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि बस एक ही फाइन। उसके बाद कॉलेज में जाके डांट पड़ा था, ऐसे बहुत सारे, इतना मस्ती किया था, इतना कांड किया था, ठीक है। तो मस्ती बहुत किए थे, दोस्त ऐसे थे बहुत अच्छे थे मेरे जितने, तो वही आई वुड से। एंड बहुत एक दोस्त था मेरे स्कूल का दोस्त, मेरा जो एंड्रॉयड डेवलप करना, एंड्रॉयड को जो डालना था प्ले स्टोर में, यू हैव टू पे $25, ठीक है, एंड्रॉयड डेवलप। Hmm. तो पेरेंट्स से पूछ सकता हूँ मैं, बहुत सारे जो भी कोर्स करता हूँ, पेरेंट्स से, पापा मम्मी से पूछता, पापा मेरे को ये कोर्स चाहिए, ये कोर्स चाहिए, मेरे को करना है, तो बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं इसमें, तो पूछ रहा था। लेकिन एक एक टाइम पर क्या हुआ, मेरा ग्रेड्स बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो Hmm. उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं देंगे, देते, लेकिन वो अगर देख रहे हैं कि मेरा ग्रेड्स अगर गिर रहा है इसके कारण, तो शायद सपोर्ट Hmm. करना भी थोड़ा मुश्किल होगा उस टाइम को, क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ Hmm. अगर ये इसको ज़्यादा पैसे देंगे तो इसमें भी पूरा घुस जाएगा। तो मैं Hmm. उनसे पूछने के लिए भी थोड़ा डर था कि मैं पूछूँगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने दोस्त से बोला था, ठीक है। मेरा एक दोस्त, स्कूल का दोस्त है बहुत, अभी भी मेरे साथ ही है, उसके साथ ही बहुत बात करता हूँ अभी भी सर। तो मैंने उससे बोला, भाई मेरे को $25 प्ले स्टोर में डालना है, $25 का लगेगा। तो मैंने अब उस टाइम को बहन से पूछा भी नहीं, ठीक है, बहन भी है मेरी। तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरी बहन है, मैं उससे तो पूछ सकता हूँ पैसे। और मैंने उससे ज़रूर बोला कि मेरे बहन जो है वो दे देगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पैसे वो दे देगी, ठीक है। बस शायद तुम अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? जस्ट लाइक 200 या 300 भी, वो भी काफ़ी है, ठीक है। $25 में मतलब शायद 2500, शायद, मतलब याद नहीं है। तो मैंने उससे बोला 200-300 भी काफ़ी है। अब मेरे को थोड़ा शर्म शर्म लग रहा था, और मैं वो लगा कि पूछने के लिए। तो उस उसने उसके बाद मेरा मैसेज, मैं अभी भी याद है, मैं स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। तो उसने बोला कि भाई तेरे को जितना पैसा है तू पूछ ले, ठीक है, मैं दे दूँगा, ठीक है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि तू हाँ। मैं उससे बोला कि नहीं मेरी बहन है, वो दे देगी पैसे, ऐसा नहीं है। लेकिन दैट टाइम मैंने अपनी बहन से पूछा भी नहीं, ठीक है। उस टाइम को मैं पूछा नहीं, हाँ। मैं बस बोल रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसे तुमको देना नहीं पड़ेगा, हाँ। इसलिए मैं बोला था कि मैं बहन दे देगी, ठीक है। उसने बोला कि नहीं, शायद तुमको शायद और चाहिए होगा, लेकिन तू पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो तुमको Hmm. जितना चाहिए तू पूछ ले अभी, ठीक है। Hmm. तो मतलब वो शर्मा मत, जितना चाहिए तो पूछ ले, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दैट फ्रेंड ऐसा फ्रेंड है मेरे कि उसको मतलब ही डज़न्ट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या ऐप है, मैं उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। उसको बस पता है कि हाँ, फ्रेंड सपोर्ट करना है इसको, लेट दैट लेवल जितना भी हो सके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सिविल साइड से है, सिविल इंजीनियरिंग से है, उसको आपकी उसका इतना पता नहीं है, ठीक है। तो ही Hmm. हेल्प्स, सपोर्ट्स इन एवरी फील्ड एज मच एज पॉसिबल, पैसे या कुछ भी हो, ही हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड्स, आई एम फॉर्चुनेट कि आई हैव सच फ्रेंड्स, कॉलेज में या स्कूल में हर जगह आई हैड सच फ्रेंड्स, वही Yeah, चीज़ है, yeah, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। yeah, yeah. Those friends are really, really a blessing in a life. Yeah. So, okay, Bhaiya, so let's wind up this session and Anubhav's Bhaiya's social links of LinkedIn, Instagram, YouTube, and even about his startups will be in description. Do check out them and let's connect with Anubhav. थैंक यू गाइस, बाय।